our Dean, Professor Manish Kumar Thakur, to welcome our guest with a small memento as a token of her appreciation for making it to IIM Calcutta. Thank you very much, sir. Also, please say a few words. सबसे पहले तो माननीय श्री पोपटराव पवार जी का स्वागत। हमें बेहद खुशी है कि आप आज हमारे संस्थान में आए। आपको पता ही है कि पवार साहब वैसे तो अहमदनगर जिले के हैं और इनका काम भी अहमदनगर ये हिवारे बाजार पंचायत है, उसी जिला में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में इनका काम है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि वो जिला काफी ऐतिहासिक रूप से सूखा से प्रभावित है, तो इनका काम एक तरह से सूखे से हरियाली का जो प्रस्थान है उसी के सिलसिले में, उसी के बारे में है। और पवार साहब, आज मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, वो गांव में आजकल 2-3 दिन ही रह पाते हैं साल में, बाकी समय उनकी भारत यात्रा चलती रहती है। और पिछले कई सालों से लाल बहादुर शास्त्री जो हमारी संस्था है मसूरी में, जहाँ IAS लोगों की ट्रेनिंग होती है, पवार साहब वहाँ जाते रहे हैं। और भी बहुत सारी संस्थाओं में इनका भाषण वर्कशॉप वगैरह होता रहता है। ये पहली बार हमारे संस्थान में आए, इसलिए फिर से आपका स्वागत है। और हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। Thank you. So, as you already know, Sri Pawar is known for his work in addressing the water shortage problem of drought-prone Ahmednagar district, particularly the Hivre Bazar Gram Panchayat, through multiple innovative grassroots level involvement, some of which includes changing the cropping pattern, drip irrigation techniques, water harvesting and water recharging, using sprinklers and so on. It is from him we will learn today that village development is not a one-time activity like any other development. What is crucial in this process is the consistency in efforts, and Sri Pawar has played a major role not only of Hivre Bazar but also 1,000 other villages of the Maharashtra government 1,000 Ideal Village project. As we all probably know that the future we are heading to is scarcity of energy, food, water, all these crises looming more on us with the increasing global warming. Sustainable economic growth in every village can not only bridge this rural-urban divide and reduce the influx of people to cities, but also can address these problems of scarcity of resources. So, for his immense work in sustainable development, Mr. Popotra Pawar awarded Padma Shri on 8 November 2021. He is the first Sarpanch and only one to date who has received this award. He is member of various national state level committees. The list is pretty long. He actually wanted to be playing cricket, okay, when he was in school, and he also played in the state level between Pune University. He represented in Pune University in the All India level during his M.Com. He also played for Mumbai, Pune, and he gave up his job in Air India in 1989 to actually become the Sarpanch of the village. Something in the village moved him so much.
So he's also got the Doctor of Science honorary award from Mahatma Phale Agricultural University. It is very kind of you, sir, to accept our invitation and travel all the way to Kolkata to deliver this talk and enlighten us about your journey, and I'm sure you will enlighten much of our young students about how we should take our country forward. Thank you very much, and the floor is yours. थोड़ा नमस्कार। आज मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि आज एक पवित्र जगह से शाश्वत विकास का एक बात करने का मौका आज यहाँ पर मुझे मिला है, क्योंकि मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु 1965 में आदरणीय प्रोफेसर इसके चक्रवर्ती सर जी ने इस संस्थान की स्थापना की है। और आज हमारे देश में आदरणीय प्रोफेसर निशिगंधा भुइया मैम, CEO कर्नल आलोक चंद्रा जी और डायरेक्टर उत्तम कुमार जी आज इस संस्थान को आगे लेके जा रहे हैं। तो आदरणीय मनीष जी तो महाराष्ट्र से पहले जुड़े थे, जहाँ से उन्होंने पानी से काम करना शुरू किया। ये पुणे के नजदीक एक ब्लॉक है पुरंदर, जहाँ हमेशा पानी की समस्या थी। और महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट विलासराव सालुंके जी, जिन्होंने पानी रेशनिंग से देने का प्रयास किया था, उस संस्थान से सब जुड़े हुए थे। और आज उन्होंने वेलकम मेरा स्वागत यहाँ पर किया है। और मैम ने भी जो कुछ मैं कर रहा हूँ आपके सामने प्रेजेंटेशन किया है। तो आज यहाँ आने के बाद एक खुशी की बात यह है कि हमारे देश में तो IIM हो, IIT हो, तो इसका काफी अच्छा मैनेजमेंट का प्रयास भी है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में या ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम सबके सामने बहुत सारी समस्या है। इसका एकमात्र कारण है कि हम मैनेजमेंट तो ठीक से किया, IIT बनाई, IIM बनाया, IAS, IPS, IRS, और यहाँ से बहुत लोग डिग्री या डिप्लोमा या डॉक्टरेट लेके बाहर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो फाइनेंशियल पैकेज की ओर हम सब जा रहे हैं और मानवीय मूल्यों की स्थापना कमी होने के कारण पूरी दुनिया चिंतित है कि 72 के ड्राउट के बाद पूरे भारतवर्ष का पेड़ जो है तो अमेरिका से आए हुए अनाज से हुआ, और आज अमेरिका ड्राउट फेस कर रही है। अंग्रेजों ने कभी भी AC और कूलर और फैन यूज नहीं किया, लेकिन लास्ट ईयर हम सबने देखा है टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ। और रिसेंटली लास्ट मंथ में ही जो जोशीमठ में हुआ हिमालय में, वो भी हम सबके सामने। तो अगर मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं हुई तो खाली फाइनेंशियल पैकेज तो बनेगा, लेकिन जो हैप्पीनेस का GDP है वो तो नहीं बढ़ा सकते। इसे जो प्रयास मैंने 89 से इस गांव में किया, ये हमारी पंचायत, ये ग्राम संसद है और ग्राम संसद में सारे ऑफिसेस यहाँ पर, और मुझे जो इस गांव में काम करने का मौका मिला है गांव में, और आज मैं पिछले 13 साल से महाराष्ट्र स्टेट की एक आइडियल विलेज प्रोग्राम का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे पहले आदरणीय अन्ना हजारे जी उस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन 2008 में उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मा मेरे ऊपर दिया कि एक गांव में आपको अच्छा प्रयास किया है। तो हमारे पूरे महाराष्ट्र में जो है कि करीबन 80,000 से ज्यादा रेवेन्यू विलेजेस,
साथ ही में 28,000 ज्यादा पंचायत है। तो क्यों ना ये मूवमेंट पूरे महाराष्ट्र में जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में 5 भी कम से कम मॉडल गाँव बने। और आज वो स्टेट लेवल का जो अनुभव है वो अभी 2020 जैसा है, क्योंकि पहले तो 30 साल का मेरा अनुभव जब अभी महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, जहाँ नक्सलाइट एरिया है गढ़चिरौली एरिया में, यहाँ भी एक मॉडल गाँव बना है। जहाँ विदर्भ में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ करीब 68 फार्मर सोसाइटी, एक विलेज जो कोठोड़ा करके है, तो वो गांव जब इस आदर्श योजना में शामिल हुआ, आज एक भी किसानों ने फार्मर में अपनी सुसाइड नहीं की। इसके साथ ही साथ मुझे अवसर मिला, जो आमिर खान जी महाराष्ट्र के ड्राउट के ऊपर काम कर रहे हैं, और सत्यमेव जयते में उन्होंने जो सेकंड लास्ट एपिसोड बनाया था वो हमारे गांव का वाटर मैनेजमेंट के ऊपर किया था। खुद आमिर जी गांव में आके गए, उनके सारे ट्रेनिंग पहले जो 3 ब्लॉक में सिलेक्शन हुआ, सभी ट्रेनिंग हमारे गांव में हो गए। तो इस तरह से ये जो अनुभव है अभी महाराष्ट्र तक नहीं, नेशनल लेवल तक हुआ है। और जो प्रयास पूरे भारतवर्ष में घूमने का प्रयास होता है, अभी ऐसा एक भी स्टेट नहीं है जहां में जाके नहीं, और सभी IIT में जाने का मौका मिला, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन। और बस पहली है IIM है कि जहां आने का पहला मौका मुझे आज मिल रहा है। तो ये है कि ये विलेज पंचायत है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब आजादी के बाद दिल्ली में पहली ग्राम सभा हुई, तभी यही कहा था, बैक टू विलेज, चलो गांव की ओर, क्योंकि ज्यादातर आबादी और ज्यादातर भूमि जहाँ है वहां से प्लानिंग करो। ग्राम सभा बोला, सबको बोलो नीड बेस्ड प्लान हो, रिसोर्स बेस्ड प्लान हो, क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर उसका प्लानिंग हो। जब ये ठीक से प्लानिंग होगा फिर ये बजट ब्लॉक हो जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल, फिर बजट प्रोविजन केंद्र और राज्यों की सरकार करेगी, और सीधा जो पैसा है गांव में जाएगा। क्योंकि आजादी की लड़ाई में सब बेहोश है, राष्ट्र पेट बहुत बड़ा है, तो उस वक्त ही हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक से हो तो लोग गांव छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए शहर नहीं आए। वहां पीने को पानी हो, एग्रीकल्चर वाटर हो, एक सामाजिक सद्भावना का माहौल हो, हेल्थ, एजुकेशन, पावर सप्लाई, ये सब अगर गांव में है तो लोग गांव से शहर की ओर नहीं जाएंगे। दुर्भाग्य यह रहा। तो हमारा सारा प्लानिंग केंद्र और राज्यों की राजधानी से हो, और जो भी समस्या गांव में, समस्या छोड़ के हमारा प्लानिंग हुआ। और आज आजादी मिल गई तब 75 या 70% लोग गांव में थे, 30 या 35% लोग शहर में। गांव और शहरों का एक रिलेशन, गांव आत्मनिर्भर थे क्योंकि उस वक्त फंड्स और पैसा ही नहीं था, लेकिन एक दूसरे के साथ सब मिलके लोग कंट्रीब्यूट करते थे, शेयरिंग करते थे, पॉजिटिव हो निगेटिव हो उसका सॉल्यूशन लेते थे। और आज हम देख रहे हैं सब गांव से माइग्रेट होकर शहर की ओर जा रहे हैं। शहर में तो एक इंडिया बसा, दूसरा भारत है, और तीसरा इंडो भारत, जो खाली स्लम में। अब प्रॉब्लम वही है, लाइन ऑर्डर की समस्या वही से शुरू। तो ऐसा क्या हुआ इस गांव में कि जो लोग गांव छोड़ के शहर गए थे वो वापस गांव में आ गए। करीबन 70 परिवार जो गांव छोड़ के शहर गए थे, मुंबई, पुणे, ठाणे या अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, तो शुगर केन, कठिन या जहां कहीं जो कुछ मिलेगा वो काम करने के लिए, वो लोग वापस गांव में आ गए। और मैं जब 76 स्कूल में गांव में था, 2 रूम में 4 क्लास चलते थे। 4th के बाद पढ़ाई के लिए बाहर जाना, 7th के बाद कोई लड़की पढ़ाई नहीं कर सकती थी, और मेरी भी पढ़ाई रिलेटिव्स के पास हुई। उसके बाद क्रिकेट का जो एक वहां पर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में खेलने का मौका मिला कि जब मैं 12th साइंस कर रहा था, तभी घर वालों का यही था कि तू देख तेरा खुद का अपना करियर बना। तो साइंस कर रहा था, उस वक्त स्टेट स्कूल क्रिकेट टीम के कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, खेलना पसंद किया, प्रैक्टिकल छोड़ दिया। और जब आ गए तो कॉमर्स ज्वाइन करके FY SY को था, पुणे यूनिवर्सिटी मैंने रिप्रेजेंट किया, TY गया, सेकंड टाइम रिप्रेजेंट किया। और वेंचर विनर होके हम ऑल इंडिया चेन्नई गए, तो ऑल ओवर इंडिया से 10 यूनिवर्सिटी थी, लीग कम नॉकआउट। तो हम दिल्ली के साथ हार गए थे, जब मनोज प्रभाकर दिल्ली लीड कर रहा था, चेतन शर्मा पंजाब यूनिवर्सिटी,
बहुत सारे तो ऑल इंडिया जब आते हैं तो टेस्ट क्रिकेट का नॉकिंग करने वाले आते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्रिकेटर के साथ खेलने का मौका मिला, लेकिन जब 72 का ड्राउट, 77 का ड्राउट, 83 का ड्राउट, 3 ड्राउट के कारण लोग गांव छोड़ के शहर की ओर पलायन करने लगे टू सर्च फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। और जब लोग शहर गए तो जो बैड उनकी गलत आदत थी वो गांव में आ गई। जिस गांव में घर घर में दूध था, मिल था, गाय थी, भैंस थी, उसी गांव में एक अच्छा रेसलर का गांव कहा जाता था। पूरे भारतवर्ष के टॉप के रेसलर्स हमारे गांव में आकर गए थे। और ऐसे हालात में पैसा तो नहीं था, लेकिन पीने के लिए पानी था। और आज के हालात में हम देखेंगे, आज फंड्स बहुत सारे, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। एक तो ड्राउट है और दूसरा ग्राउंड वाटर क्वालिटी हमारी खराब हो गई। इसके कारण ये परेशानी थी। और जब 89 में 83 में गांव में ऐसी एक पर्कुलेशन टैंक का निर्माण का काम महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से चल रहा था, और तभी जो गड़बड़ हो गई तो उसमें मिस यूज जो मनी पैसे का होगा, इसके कारण एक अविश्वास की भावना गांव में आ गई। और इसी कारण गांव में थोड़ा दूध की जगह शराब आ गई। और 83 में जो बुजुर्ग था, लड़ाई झगड़े में उसकी जान चली गई। फिर राजनीतिक जो है वो सब आ गया। 302 के कारण पुलिस वाला गांव में आने शुरू हो गए। और 83 से 89 अगर मिले लेवल काम करने वाले सर्वेंट को पनिशमेंट देना है तो उसके ट्रांसफर हमारे गांव में की जाती। एक तो खुद शराब पीने वाला या पिलाने वाला चाहिए हालत। जिस गांव खुशी से रहता था जब पैसा नहीं था, अब जब पैसा आना शुरू हुआ तो गलत आदत आ गई। और इसी कारण एक ब्लैक लिस्टेड क्रिमिनल गांव बन गया। और उसके कारण यह हालात थे गांव की। देखो दिसंबर 1990 से गांव जनवरी एंड को ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता था, 100 फीट जमीन के नीचे जाना पड़ता था। और अप्रैल मई में तो 2-2 किलोमीटर तक महिलाओं को एक खंड भर पानी के लिए घूमना पड़ता था। यह हालात शुरू हो गए। और ऐसा पानी की समस्या, मड और स्टोन के मकान थे जो एक माइग्रेशन के कारण खंडर बन गए थे। और ये इस तरह की हालत, ये गांव का एंट्री गेट था, मड और स्टोन का हनुमान जी का टेम्पल और ये विलेज पंचायत का ऑफिस। बारिश आ गई बस छुट्टी देनी पड़ती और सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो गई थी। और जो शुरुआत 89-90 में हो गई तो ये आ गया कि जब 89 में इलेक्शन आ गया तो ज्यादातर जिन बच्चों को गांव के स्टूडेंट को पता था मैं अच्छा क्रिकेट करता हूँ, वो शहर में भी मेरे मैचेस देखने आ जाते थे। तो उन्होंने फोर्सफुली ये कहा कि गांव इतना बिगड़ गया है तो इसमें कुछ करने की जरूरत है। और साथ ही में उसको सपोर्ट गांव की सारी महिलाओं ने दिया, क्योंकि एक लोकल लीकर की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी, इतनी खराब हालत थी। स्टूडेंट लोकल लीकर लेके आने के और विलेजर्स और पंचायत के लोग स्कूल में बैठ के शराब पीते थे, इतनी खराब हालत हो गई थी। और सब 83 के बाद हुआ था। और ऐसे हालात में ये सब कंडीशन थी। तो ये चेंज का हमारा जो 89 में नवंबर 89 में सरपंच बन गया। और 2 महीने गांव में नहीं गए। जब 26 जनवरी को फ्लैग होस्ट के लिए गांव में आ गया तो सारे गांव के लोग ग्राम सभा में आ गए थे। कई सालों 10-15 साल के बाद सब लोगों ने हिस्सा लिया फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम में, वरना इसके पहले बस गिने चुने लोग आ जाते थे। डर ये था कि शराब पी के लड़ाई झगड़े ना, ग्राम सभा तो बनती ही नहीं थी। और ऐसे हालात में फोर्सफुली ग्राम सभा से आ गया ग्रुप ने कहा देखो गांव में बहुत खराब हालत है, स्कूल के लिए ठीक नहीं है, स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं, एजुकेशन कोई सुविधा नहीं, कोई बीमार है तो इनकी सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब रास्ता ही नहीं था। इतनी खराब बारिश हो गई, सारे रास्ते बस बंद हो जाते थे, कीचड़ और इसके कारण बोल्डर और ऐसे रास्ते थे। साथ ही में बिजली गांव में नहीं, पीने के पानी की सुविधा नहीं। और महिलाओं का फोर्स यही था कुछ भी करो लेकिन गांव की नशा बंद होनी चाहिए। पानी नहीं, नशा है, इसके कारण गांव के हालात बहुत बिगड़ी हुई थी। और ऐसे हालात में
ग्राम सभा से आ गया ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जब वो सामने लिस्ट आ गई बस मैं डर गया और इतने सारे प्रोग्राम कैसे फेस करूंगा मैं। और उसी वक्त ऐसा कर सरपंच बनते हो मेरी माइक 8 दिन निकल गई थी माइक कि खुद का अपना करियर का दे, ये गांव के फ्यूचर के झंझट में मत फंसना। लेकिन जब आ गए थे कुछ दिन के लिए, जब जॉब हाथ में आ जाएगा तो बस मैं ये सब छोड़ दूंगा और जॉब के लिए चला जाऊंगा। बस इसी कारण परिवार वाले मान गए थे। और जब शुरुआत हुई तो करना क्या, पैसा तो नहीं है। और पंचायत सेक्रेटरी को पूछा मैंने, भाई हमारे अकाउंट में कितना पैसा है? उन्होंने कहा 14,000 रुपीज। और उस वक्त वो पैसा मेंटेनेंस के लिए यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे बचपन में मैंने जो अनुभव किया, गाँव 2 ही रूम में 4 क्लास चलते थे, लेकिन टीचर का प्रभाव इतना होता था, अगर घर वाले बच्चों को यही डांटते थे, ठीक है ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा, गड़बड़ी करता है तो आपके टीचर को बता दूंगा। और टीचर का डर बहुत होता था। उसके साथ साथ सारे सिंपल से रूम थे और उसमें जो काउ डक लेके आने की सब यूथ और जो लड़कियां हैं वो सब ठीक से करने की। और सैटरडे हमारा खुशी का दिन होता था। उस वक्त स्टडी और कुछ नहीं था, खाली पानी लेके आने का और मदद करने की उसके। ये सब देखा टीचर के 2 ही लेकिन 4 क्लास चलाते थे, उनका भी अच्छा प्रभाव था। और बाद में हरे भरे पहाड़ थे, अगर समझो आम का सीजन आ गया तो पता चलता था किसके कपड़े के ऊपर उसका डॉट ये है, तो पता चलता उनके परिवार में कोई आम बस पका हुआ है, बस चोरी करने निकलते थे। अगर हाथ चुप के हाथ में आ गया तो पता चलता है उनका जामुन का पेड़ का जामुन पक गया है। अगर सर चुपता है तो बेर का पेड़ बस पकना शुरू हो गया। ये इंडिकेटर थे रिसोर्सेस और यूथ और विलेजर्स के साथ साथ। और ये ह्यूमन वैल्यू जितने स्ट्रांग थे तो लोग उसको प्रोटेक्ट करते थे। पेड़ काटना नहीं है क्योंकि वो फ्रूट देता है, उसको ठीक से संभालना है, ये था। और जब देखा पहला सरफेस वाटर पीते थे, झरने का पानी अप्रैल मई तक झरने में पानी चलता था। बस रेती को हटा दिया, 2 मिनट रुक गए, हाथ और नींद के ऊपर आ गए तो मुंह से पानी पीने में मजा आती थी, जैसा गाय या बैल पानी पीता। कभी बीमार नहीं हो गए हम झरने का पानी पी के। और गांव में गरीबी थी लेकिन लोग लिटरेट नहीं थे, लेकिन कल्चर थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का था। अगर किसी गरीब परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, सारे गांव के लोग अपना चूल्हा बंद करके बस शेयरिंग करते थे। दुख का बंटवारा था और हैप्पीनेस की जो अगर कोई उत्सव आते हैं गांव में, सब लोग शेयरिंग करते। ये मैंने देखा था और पूरा बिगड़ा हुआ गांव देखा। और जब महंगाई तो कैसा करना, तो पहले शुरुआत जो प्रॉब्लम मैंने मेरे बचपन में देखे थे वो उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। और जो है तो सब लोगों ने फोर्सफुली कहा, तो पैसा नहीं और एक दिमाग में आइडिया आ गया। उस सेक्रेटरी को मैंने पूछा, भाई 14,000 हमारे पास है, किस तरह से हम ये पैसा स्कूल का मेंटेनेंस, हनुमान जी का टेम्पल का मेंटेनेंस, गांव में जिम है उसका मेंटेनेंस, साथ ही साथ में विलेज पंचायत का एक मंदिर है ग्राम विकास, उसका मेंटेनेंस कैसा करें। कहा कि बारिश आने के बाद भी हमें वहां पर बैठने का मौका मिले। जब ये देखा तो सेक्रेटरी ने कहा 14,000 है। उसके लिए मैंने बताया कि अगर हम 1,000 ट्रेंचेस लेंगे, गड्ढे निकालेंगे और वहां टैमरिंग का प्लांटेशन करेंगे और मस्टर भरने के बाद पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हम गांव में जमा करें। बस ये आइडिया आ गई और हमारी शुरुआत हुई। और इसी शुरुआत का बेस था येलो कलर विलेज पंचायत, ब्लू कलर ग्राम सभा। 100% 26 जनवरी 90 से हम ग्राम सभा का ही सपोर्ट लेते और उसके कारण सपोर्टिव सिस्टम है। और जो लोग माइग्रेट होके चले गए थे वो जब 2000 के बाद में गांव में आना शुरू हो गए, जब 70 परिवार थे उसमें से 18 फैमिलीज SC ST NT यानी बिलो पॉवर्टी के नीचे के लोग थे, सब गरीबार परिवार थे। क्यों हम स्लम में रहेंगे, ना बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं कुछ। चलो गांव में इतना सारा है तो चलो हम गांव की ओर निकले, वापस रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। अब जब वो गांव में आते उसको रेशन कार्ड तभी मिलता है आफ्टर 1 ईयर,
जब 1 साल की वो कैरेक्टर की गारंटी देंगे तो वो वोटिंग लिस्ट में आता है, उसको रेशन कार्ड हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि गांव की आदत डिसिप्लिन है और बाहर जाने के बाद तो कोई डिसिप्लिन नहीं, वो शराब नहीं पीना चाहिए, गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। बस ये शुरुआत होगी और ये सब तो सूत्री ओपन ग्रेजिंग को बैन, पेड़ काटना, ट्री कटिंग को बैन, लोकल लीकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग बैन कर दिया। उसके साथ साथ परिवार नियोजन को ट्यूबवेल नहीं लेंगे, हम डबवेल से इरिगेशन करेंगे, साथ में संविधान करेंगे और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट साथ साथ ज्यादा पानी वाली फसल भी नहीं उगाएंगे। तो इस तरह से ये काम शुरू हुआ और ये फंडामेंटल्स ऑफ डेवलपमेंट इस तरह से हर एक डिसीजन हमारा ग्राम सभा में होता है और सभी 80% से ज्यादा लोग ग्राम सभा में आते हैं, खुद के अपने प्रॉब्लम रखते हैं। पहले तो 1 अप्रैल को करते थे, अभी हम 31 दिसंबर को ग्राम सभा करते हैं। उसमें जो लास्ट ईयर में जिन डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया उनके ऑफिसर स्टेज पे होते हैं, एक चीफ गेस्ट आता है, डीएम हो या पुलिस सुपरिटेंडेंट हो या कोई अलग से। एक ग्राम सभा को प्रोफेसर राजमोहन गांधी आ गए थे जो 2 दिन गांव में रहे और उन्होंने देखा, जो ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी जिन्होंने देखा कि किस तरह से किया। तो अलग अलग लोग आते हैं, समोर सामने लोग, और एक टॉक होता है, बस सब लोग मिलके खाना खाते हैं और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। लास्ट ईयर का इवैल्यूएशन, नेक्स्ट ईयर का प्लान, जैसा कल का बजट दिल्ली में हो गया तो बजट के ऊपर भी कमेंट्स के लिए सब प्रेस फोन और ये आ जाते हैं। तो मैंने यही कहा था कि बजट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका आउटकम क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। और गलती है तो गलती के ऊपर एक्शन की प्रोविजन होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जो करते हैं तो सब 95% जो भी हमारा ईयरली बजट होता है वो हम 95% फुलफिल करते हैं और नेक्स्ट ईयर का प्लान तैयार। अभी नेक्स्ट 25 साल का प्लानिंग हमारे पास, जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं लाएंगे तब तक आउटकम अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से और ये 89 से 15 देखो कि जितना भी काम कर रहे हैं ये हमारा प्रोसीडिंग का होगी। प्रोसीडिंग में एक बार डिसीजन लिया तो वो पूरा ही करते इस तरह से। अब देखो ये काम बिफोर डेवलपमेंट एंट्री गेट 1 नंबर 2 नंबर 1 लोकल ट्रीज में बबूल छोड़ के कुछ न बैरन ही लोग देखो, टॉप जो है बिल्कुल बैरन था, कुछ नहीं। और मेरे बचपन में ग्रीन कवरेज जब दशहरा आता था तो व्हाइट कलर का मोगरा फ्लोरिंग होता था, तो हम वो फ्लावर कलेक्शन के लिए जाते थे और हमारे बुक्स और इसका जो पूजा करने के लिए यूज करते थे। तो हिरन दिखता था, पिकअप दिखता था, वाइल्ड लाइफ मिलता था। और जब 77 के बाद बिल्कुल सब माइग्रेट हो गए, कुछ नहीं बचा गाँव में। और ये जब क्रॉपिंग पैटर्न यही था, मिलेट जो बाजरा और ज्वार, बस अगर कोई भी गेहूं की रोटी खाएगा तो गांव का अमीर माना जाता था। 5-6 परिवार ऐसे थे उनको पूरे 1 साल की गारंटी थी फूड सिक्योरिटी की, बाकी लोगों को 4 माह के लिए माइग्रेट होना ही पड़ता था। यह हालत था। और ये जो लास्ट वाला फोटो है वो देखो, यहाँ जो है कि 92 में एनएसएस का कैंप किया था, क्योंकि मैं कॉलेज में क्रिकेट के साथ एनसीसी एनएसएस भी हुआ करता था। तो पहला डिस्ट्रिक्ट कैंप किया था और नर्सरी बनवाई, उसे नाम दिया था रान मोगरा अभियान। जो बचपन में देखा वो रिसोर्सेस, जामुन का पेड़, आम का पेड़, बेर का पेड़, बस उसका प्लांटेशन और निर्माण करेंगे और बचपन की खुशी आज हम ले लेंगे। इस तरह से बिल्कुल ब्लैक स्टोन के टॉप पे फोटो आप देखेंगे तो ये देखो फिर ये तैयार हो गई। और जब हमने 89 में छोटा काम हुआ, सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, 14,000 में हमारे 4 मंदिर अच्छे बन गए। एक एजुकेशन मंदिर, एक आध्यात्मिक मंदिर, एक ग्राम विकास का मंदिर यानी पंचायत, और तीसरा था जिम कि जो हेल्दी हो सब गाँव के। इस तरह से काम किया, रिजल्ट अच्छा गया, इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई और लोग गांव में आना शुरू हुए। काम तो करना था और 92 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये अनुभवी कलकत्ता से ही था केंद्र सरकार को, किस तरह से हमारे जंगल को ग्रामीणों के सपोर्ट से हम उसको प्रोटेक्ट कर सके।
था, ना एनजीओ फंडिंग था, ना स्पेशल कोई स्कीम थी गवर्नमेंट की। और जब ये मौका आ गया तो मेरी खुशी यही थी, सीमेंट से ज्यादा इंटरेस्ट मेरा जो इकोसिस्टम डेवलप करने में था। और जब ये प्रयास किया टॉप टू बॉटम रील टू वैली कंसेप्ट से, और टॉप पे 1 नंबर की फोटोग्राफ, वहीं से हमने ट्रेंचिंग का काम शुरू किया। देखो बिल्कुल बैरन था, एक भी पहाड़ के ऊपर गिने चुने पेड़ नीम या बबूल के देखने को मिलते थे, बाकी सब बैरन था। अगर मार्च शुरू हुआ तो छाव में बैठने के लिए पेड़ भी नहीं था, घर के सामने बैठ गए तो पूरा सिनेरियो देखने को मिलता था, सब बैरन था। और ऐसे हालात में ये शुरुआत हमने की और पहला टॉप पे काम किया ग्रामीणों के सहभाग से जंगल संरक्षण। और वहां जो पहला प्लांटेशन हुआ उस वक्त का जो यूकैलिप्टस या सुबबुल वो सारी वही थी। और सेकंड ये टॉप ट्रेंचिंग, इस तरह से काम किया। 1 नंबर की फोटो देखो लास्ट की सेल्फ स्पॉट की फोटोग्राफी। और मेरे पास क्रिकेट के कारण एक कैमरा हुआ करता था, तब ये फोटो निकाला था। 89 फोटो है बिफोर आफ्टर। और जब ये किया तो इस तरह से अचीवमेंट जो है, तो इस तरह से हमारा स्किल्स हो, आउटकम, स्ट्रेटेजी इस तरह से देखी और इसका काफी अच्छा फायदा हुआ। तो ये देखो टॉप का जो मैंने शुरू में देखा आपको बताया, ये 1 नंबर की फोटोग्राफ। ये देखो जो पहाड़ के ऊपर बोल्डर का स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर है ना नेचुरल था, तो बिल्कुल एक पहला वाटर पॉन्ड बनाया था जंगल में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बिल्डर को आ जाए, और वहां ओपन ग्रेजिंग को बंद कर दिया। और दशहरे के बाद खाली 100 रुपीज तो सीजन चार्ज करते थे, रोज एक हेडरोड काट के लेके जाने का। कोई पालतू जानवर ओपन ग्रेजिंग के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि इसके कारण प्लांटेशन खराब होता है और सॉइल इरोजन ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रयास 1 नंबर 2 नंबर की फोटो सेल्फ स्पॉट की देखो, तो इस तरह से एक बदलाव। और ये गलिप्टर जो वाटर फ्लो है पहाड़ों से आता है ढलान से, उसका स्पीड कंट्रोल करना और फिल्टर का काम करता है, मिट्टी को रोकता है। और स्पीड कम होने के कारण नीचे का स्ट्रक्चर सुरक्षित हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर और दो जब उस वक्त पीसी अलेक्जेंडर गवर्नर थे 2001 में, वो विजिट करने आ रहे थे, तभी 4 अगस्त को आए थे वो, 4 अगस्त 2001 को। बारिश नहीं हुई थी, बिल्कुल सब ड्राई था, तभी वो कलर लगाया था। और सिर्फ पानी की गिरने के बाद सिर्फ स्पॉट के फोटोग्राफ, फिर ये परकोलेशन डैम, चेक डैम और ओपन वेल्स, इस तरह से रील टू वैली कंसेप्ट से ये काम। और जब ये काम कर रहे थे हम, देखो 400 में रेनफॉल हुआ 1 नंबर वाटर शेड में, तो नीचे हैंडपंप और कुएं को बस उतना ही पानी मिलने का, जो दिसंबर में खत्म हुए थे। और 50-60 मिलीमीटर भी कम हुआ तो भी उतना पानी मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जियोलॉजी मैसिव बेसल्ट 81.50 बेसल्ट, और बेसल्ट में वाटर रिचार्ज कैपेसिटी बहुत कम होती है। और इसके कारण जब रिचार्ज हुआ तो रन ऑफ शुरू हो जाता है, वाटर लिफ्टिंग शुरू हुई, बस पानी की समस्या और टैंकर गांव में आ जाता। ये था तब ये लोकल नॉलेज हमारा था। ये अर्धन डैम वो जो ऑपरेट होता था 95%, क्योंकि नीचे जो जियोलॉजी वो बेसल्ट और कॉम्पैक्ट रॉक ही है, उसके कारण ग्राउंड वाटर चार्ज रिचार्ज के लिए कंडीशन नीचे क्या है, हाइड्रोजियोलॉजी का स्टडी होना चाहिए। यह तो मैं इनकम तक पढ़ा, लेकिन अनुभव से सीख लिया ये सब क्या होता है। और जब ये प्रयास किया, स्टेट लेवल के डायरेक्टर थे और जीएडी है, अभी वो सीएम ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तब ये लोकल नॉलेज हमारा टेक्निकल नॉलेज जोड़ दिया। अब 500 मीटर लेंथ 3 फेज में आर्टिफिशियल एक्यूफर ब्लास्ट करके वो क्रिएट किए और सरफेस वाटर को ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया। और आज के दिन अगर 200-300 mm से ज्यादा बारिश है तो हैंड पंप ऑटोमेटिक चलता है, वो लास्ट मंथ तक नजारा देखने को मिलता है। और चाहे 60 mm हो या मोर देन 300 है, तो भी ग्राउंड वाटर काफी अच्छा इंप्रूव हो। अब ये डिटेल है किस तरह से किया है, वो प्लान है। और ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट, जब गांव में हमने ये प्रयास किया वाटर शेड का, तब रेन गेज जो था वो तहसील में था, सिटी में था, गांव से 20-25 किलोमीटर दूर। और वहां से कलेक्ट किया जाता था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कितनी mm बारिश हो गई। एक तो हालात ऐसी कि हर एक गांव में
वाटर शेड में वेरिएशन होता है, अलग अलग टाइप का। कभी 20 mm में वाटर शेड में 30 है या 10 mm में हो जाता है। तो जब देखा 2000 में फर्स्ट टाइम हमने वाटर बजटिंग रखा, जो देश का पहला गांव है जो वाटर बजट के आधार पर क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन करता है। और इस तरह से हमने जो निकाला, अगर 300 से ज्यादा है, या देखिए 22 का आ गया है और 23 का भी उसका जो लॉन्चिंग का भी हम कर रहे हैं। तो इस तरह से, और जब 300 mm बारिश है तो ये अगर 100 mm है तो ड्रिंकिंग वाटर एश्योर्ड है, 100% खरीद मिलेगा। और रबी नील आएगा, समर सीजन बिल्कुल क्रॉप नील आएगा। एक तो हॉर्टिकल्चर ड्राईलैंड और हॉर्टिकल्चर, एक कस्टर्ड एप्पल हो या थोड़ा बहुत ऑरेंज है, बस इसके लिए पानी रखेंगे। और जो भी ग्रीन पाउडर है गाय और भैंस के लिए, तो बस उतना ही करेगा। अगर 200 है एश्योर्ड है ड्रिंकिंग वाटर 7% तो खरीद है, अब 50% रबी का फसल और समर सीजन बस वो रिजर्व करेंगे ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अब 300 है तो देखो इस तरह से पिछले 30-32 साल के अनुभव से यह आउटकम है। एश्योर्ड ड्रिंकिंग वाटर 7% करीब, 70% रबी, 30% समर सीजन का क्रॉप। अब मोर देन 300 है तो रबी और समर सीजन में बढ़ोतरी होगी। इस तरह से आ गया और एक क्रॉपिंग पैटर्न। मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को बैन कर दिया, या शुगर केन, बनाना, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स सीजनेबल क्रॉप की ओर चले गए, क्योंकि महाराष्ट्र में करीबन बहुत सारे वाटर शेड के प्रयास हुए, रिचार्ज हुआ, पानी वाटर लेवल बढ़ गई और सब मार्केट ड्रिवन क्रॉपिंग पैटर्न की ओर जाते। गारंटी है शुगर केन, सब शुगर केन की ओर जाएंगे तो वापस ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है और ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक साइड में गांव से शुगर केन फैक्ट्री के लिए जाता है और शहर से ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी का टैंकर गांव में आ जाता है। कंडीशन क्योंकि जमीन के नीचे 200, 400, 500 फीट ट्यूबवेल लेके गए, फिर वाटर पॉन्ड बनाए, उसके ऊपर हमने प्लास्टिक डाल दिया और ग्राउंड वाटर टोटली ड्राई कर दिया। तो यह हालात है कि हमने ये किया, मोर देन 10% से ज्यादा हम शुगर केन से ज्यादा पैसा सीजनल क्रॉप में लेते हैं। और ये देखो रिवर्स माइग्रेट फैमिली जो बस कभी 40 साल पहले गांव छोड़ के गए थे, वो वापस गांव में आ गए। बस पथरीली जमीन थी, कुछ नहीं, ओपन ग्रेजिंग लैंड थी, और आज 5-6-7 लाख रुपए पर ईयर उनका इनकम है। पहले तो इस तरह का मकान था, लेकिन टॉयलेट कंपल्सरी है, गांव में सपोर्ट करेंगे फिर रेशन कार्ड मिल जाता है। और ये ड्रीम के ऊपर उन्होंने देखो ये ग्रीन पीस और ये सीजनेबल क्रॉप, इसके करना अच्छा मार्केट। और फार्म लेबर थे, शुगर केन कटिंग के लिए बाहर गए और अभी गांव में आके एक अच्छा घर भी बनवाया, एक उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल लिया, गांव में जितना वेजिटेबल है मार्केट जाने के लिए उसको भी आप भी इनकम शुरू होगा। और ये देखो ये परिवार 1.5 एकड़ का जमीन थी उसकी, वो फार्म लेबर था कई बार। अभी 200 लीटर पर डे मिल्क कलेक्शन है इनका। और एक लड़का जो टीचर बन गया, दूसरा एग्रीकल्चर में, डेयरी में, खुद का ट्रैक्टर है, अब खुद उन्होंने खुद का अपना अच्छा मकान भी बन गया। ये 2 नंबर की पिक्चर जो ये नीम के पेड़ छाव में जो है शैडो में, उसका ग्रास का मकान था, बस बारिश आ गई निकल सेकंड वो बबूल का पेड़ है सामने, वो देखो टीन का बनवा है। और अभी ये तीसरा मकान है, क्योंकि उन्हें ब्लास्टिंग का ट्रैक्टर लिया, क्योंकि 90 डबल थे, अभी 388 डबल्स। तो 2 राजस्थानी गांव में काम करते थे, उनके अंडर ये काम कर रहे थे, बैंक सपोर्ट दिया। तो ऐसे 4 लोग हैं कि उनको हमने बैंक सपोर्ट से ब्लास्टिंग का ट्रैक्टर दिया, और गांव में जितना भी पैसा आता है बस गांव के लिए रोजगार मिलना शुरू होगा। और एक तीसरे ट्राइबल की वुमन इस तरह से जीती थी। और अभी नीचे देखो उनका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, एक आर्मी में चला गया, और अभी उसका 30-40 लाख रुपए का मकान है। पहले की हालत थी और आज ये इस तरह से आप गांव में आके देख सकते हो। तीसरा देखो मॉडल स्टोर का छोटे वाला 20 बेटी का, अब तीसरा इनके घर में 4 टीचर बन गए। अभी 68 आर्मी में 56 टीचर है, 6 प्रोफेसर है गांव में, मोर देन 100 बीफार्म, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल या कंप्यूटर इंजीनियर बन गए। 79% परिवार में एक तो भी गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि गांव में पान का ठेला नहीं है, गांव में कोई स्टैचू नहीं है, स्टैचू प्रिविलेज, कोई जयंती पुण्यतिथि हम सेलिब्रेट नहीं करते,
लेकिन हमारे आदर्श है, उनके विचार है जमीन के स्तर पर हमको इम्प्लीमेंट करते हैं। खाली उनका डीजे डॉल्बी और वो सेलिब्रेशन शराब पी के जयंती पुण्य कुछ नहीं करते। इस तरह से बदलाव ये जैसा कि घास इस तरह से काट के लेके जाए। आदरणीय अन्ना हजारे जी थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सेक्रेटरी के फॉरेस्ट और एनवायरमेंट, इनके हाथों से ग्रास कटिंग का शुरू हुआ। ये देखो काउ डंग आ गया, बफेलो डंग। अभी 6000 लीटर पर डे मिल्क कलेक्शन यहाँ, जो 2000 में चाय में डालने के लिए दूध नहीं थे, क्योंकि ओपन ग्रेजिंग करने वाले काउस, तो बस बहुत थोड़ा बहुत दूध मिलता था। अभी फॉरेस्ट जर्सी है और हर घर में हमने गिर गाय या देशी गाय भी दी। तो इसके साथ साथ इस तरह चला काउडंग जो आता है तो उसकी स्लरी बाहर आती है, इसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम हो। 80% नहीं, क्या है नेचुरल और ऑर्गेनिक में हमारे देश में लड़ाई, सही नेचुरल है या ऑर्गेनिक, लेकिन हमने थोड़ा कॉम्बिनेशन रखा है 10-15% आउटसोर्स करके केमिकल फर्टिलाइजर जितनी सॉइल हेल्थ की जरूरत है वो उसके आधार पर। तो इस तरह से जो 35-60 फीट तक वाटर लेवल आ गए, फिर माइक्रो वाटर से इस तरह से बदलाव है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफी अच्छी हो गई। और आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही कहता है डबलिंग ऑफ इनकम, लेकिन हमारे गांव में 5 टाइम्स इनकम बढ़ गया है, 5 टाइम्स एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इस तरह से और इसमें कैश क्रॉप नहीं है, वेजिटेबल्स और सीजनेबल क्रॉप है, शुगर केन नहीं है, एक तो ओनियन, पोटैटो और ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। और इस तरह से एग्रीकल्चर में अभी पहले तो गांव में बस साइकिल ही थी, गिने चुने लोगों के पास मोटर बाइक थी। आज गांव में 100 से ज्यादा ट्रैक्टर है। वो खुद भी गांव में खुद के एग्रीकल्चर में काम करते हैं और आउटसाइड बाहर रिलेटिव किसके पास, वो भी इनकम का एक सोर्स है। एक तो एग्रीकल्चर इनकम, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी है और उसके साथ साथ ट्रैक्टर का भी इनकम गांव में शुरू हुआ। और आज सब बैंक से लिया लोगों ने और 100% बैंक का पेमेंट रीपेमेंट करते लोग। इस तरह से बदलाव आ गया। और ये भी इनकम जो विच इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस तरह से हमने जो वेजिटेबल्स का है तो इस तरह से किया। ज्वार, मूंग, तो जो है लोकल जो था हमारा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो 5 मार्च ये जो मिलेट ईयर अनाउंस किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसका जो पहला बुकलेट का निकला है उसमें हमारी होरे बाजार की केस स्टडी। तो यही है कि हम मिलेट की ओर ही काम कर रहे हैं। अब क्योंकि मिलेट यही हमारा सदियों से डाइट प्लान है, और वो राइस और व्हीट डेली हो गया, वो तो सीजनेबल था। कई उत्सव हमारे शरण आ जाते हैं तो बस वीकली, मंथली या 2 महीने वो खाया करते थे। तो अभी हम काम कर रहे हैं किचन फॉर हेल्थ के ऊपर। तो इस तरह से जो साइलेंट फ्यूचर जो है गाँव का, तो ये जो है अभी वाटरशेड का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है महात्मा फुले, जो टॉप 5 में से एक है इंडिया में, जो अहमदनगर में। वहां पर जो मैं स्टेट लेवल कमेटी का अभी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने 2.5 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दे, क्योंकि वहां के जो बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी वाले स्टूडेंट वाटरशेड और एनवायरमेंट और सॉइल हेल्थ का काम कैसा किया वो देखने हमारे गांव में आते थे। तो हमने कहा, जब विद्यासागर राव सर गवर्नर थे महाराष्ट्र के, वो यूरी बाजार विजिट करने आए। जब उन्होंने क्या पोपटराव जी इतना बढ़िया काम आपने किया है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कुछ सुझाव दे। तब आएंगे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक 1000 हेक्टेयर का एक ड्राई एरिया का वाटरशेड आइडेंटिफाई किया। हमारी टीम मेरा खुद का अनुभव और एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया। तो अभी स्टूडेंट को हमारे गाँव आने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग शिरडी, सिंगापुर जाते हैं, राजगांव सिटी, होरे बाजार आते हैं, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखने जाते हैं। तो वहाँ फ्लड एजुकेशन था, अभी हमने ड्रीप किया। एक तो वाटरशेड किया, वाटरशेड प्लस किया, और वाटरशेड के बाद लैब भी बनवाए। रनअप कितना है, सॉइल कितनी रनअप के साथ जाती है, उसका मेजरमेंट, और देश का पहला लैब हमारे गांव में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बना, और उसका एक स्टडी रिपोर्ट। और ये देखो, ये पहले का था, ये इस तरह से हमारा जो पहला और आज इतना बदलाव आ गया।
और ये बेसिक है, वन एजुकेटेड मैन कैन चेंज वन होम, वन एजुकेटेड होम कैन चेंज अ विलेज एंड वन एजुकेटेड विलेज कैन चेंज एवरीथिंग। अभी हमारे गांव के लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अभी 2 मेगावाट का ये सोलर प्रोजेक्ट गांव में करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम पावर से लेके। तो आज भी हमारे गांव में पावर सप्लाई का जो बिल है मोबाइल टाइप हम पे करते हैं, जीरो लाइबिलिटी है हमारी। तो इसके कारण 24 आवर्स पावर सप्लाई हमारे गांव में, क्योंकि जितने भी हाउस होल्ड है डेवलपर्स है 100% बिजली का बिल पे करते हैं। और आज हमारी रिक्वायरमेंट 14 लाख की है और अभी 24 लाख यूनिट के लिए हम 2 मेगावाट का करें 8 करोड़ का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग सब्सिडी में करीबन 8-10 करोड़ देती है। तो हमने ये प्रपोजल हमारे स्टेट गवर्नमेंट को दिया और आज वो करने आगे के 25 साल 1.5 रुपीज में 1 यूनिट ऐसा हम गांव में दे सकेंगे, ऐसा प्लान किया। और ये देखो पहले वाला स्कूल था, ये 2 रूम, इसके पहले का फोटो नहीं उस वक्त मिला, लेकिन ऐसा था, बाद में ऐसा बना और तीसरा ऐसा बना 89, फिर 7th क्लास 4th तक का 7th तक, और आगे ये बना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टाइप प्लान है 18 by 20 और 10 फीट हाइट, 3.5 या 4.5 लाख रुपए का टाइप प्लान था। जब 7 क्लासरूम सिलेक्ट होगा हमारे लिए मिल गए, तो हमने उसमें डिजाइन आर्किटेक्ट से किया 24 by 30 और 12 फीट हाइट। तो जिला पंचायत के पीडब्ल्यूडी ऑफिसर ने कहा ये टाइप प्लान नहीं है, हम परमिशन नहीं देंगे। तो मैं महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी तक ये मुद्दा लेके गया। प्राइवेट स्कूल को अगर कॉम्पीट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और 12 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, जितने भी अवार्ड मिल जाते करीब 2 करोड़ से ज्यादा अवार्ड मिल रहे सब गांव में जमा होते। और जहां कमी है बस चाहे इंडिविजुअल अवार्ड भी मिल गया तो भी गांव में, क्योंकि सारे लोगों के प्रयासों से बना है। और जब अभी आप देखेंगे आगे तो ये प्राइमरी स्कूल है और ये आंगनबाड़ी केंद्र है, ये तो बहुत अच्छा 92 में टॉयलेट बना है हमारे गांव में। 50% लोगों ने यूज नहीं किया, किसी ने जो मुर्गी बंद करनी या कुछ फायर स्टोर करना इसके लिए यूज किया। तब देखा ये लोग यूज क्यों नहीं करते, और उसमें गांव में अलग अलग चर्चा हुई, ये सरपंच जो फोर्सफुली ये सब कहता है, तो लोग भी निगेटिव नहीं जाने चाहिए डेवलपमेंट, इसलिए हमने छोटी आंगनबाड़ी देखी। और ये आंगनबाड़ी में ये देखो ये है, ये आधा बंद है। जब गांव में क्या होता है, छोटे बच्चे को टॉयलेट में बंद कर दिया और डोर बंद किया तो डर के कारण लोग बाहर जाना पसंद करता है, अंदर नहीं बैठे। हमने कैसा छोटा वाला टॉयलेट बनाया, आधा बंद है आधा ऊपर, वो लड़का अंदर बैठ गया तो बाहर देखता है बच्चे खेल रहे, दीवार कलरफुल है, वो टॉयलेट एंजॉय करने लगा अंदर बैठ। इसका फायदा ये हुआ कि स्कूल के लिए हमने आंगनबाड़ी तो बनाया और स्कूल के लिए भी हर क्लास को एक जिम्मा दिया। मेरा लड़का भी बीएससी आगे हुआ, मेरी जो लड़की है वो एमएससी एनवायरमेंट किया उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से, दोनों 10th तक उसी गांव में उनकी पढ़ाई हुई। जब उनका क्लास का दिन होता था टॉयलेट क्लीन करने का और गांव का रास्ता क्लीन करने का सबसे आगे दो चलते थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि गांव के लोग ढारे सरपंच का बेटा और बिटिया ये काम कर रही, फिर हमारे बच्चे कर रहे, इतना उसमें गलत क्या है। शहरों में कुछ लोग अपोज कर रहे थे, हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, ये टॉयलेट क्लीन करने के लिए। गांव में ग्राम सभा में मुद्दा उठाया कई लोगों ने। जब वो लड़का और लड़की घर जाके दादा दादी को टॉयलेट में बिठाने का प्रयास कर रहे, टॉयलेट क्लीन करने लगे और नर्सरी बनवाई थी रान में वो अभियान। हर साल हम 500 पौधों के नर्सरी बनाते रोपवाटी का, और जून में बारिश हो गई, जो भी पौधा पसंद आएगा वो घर लेके जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब उसको बड़ा करेगा उसको 26 जनवरी उसको अवार्ड दिया जाता है बाल वृक्ष मित्र पुरस्कार। इसी कारण हर घर के पास 5 तो भी वैरायटीज के फ्रूट्स है और 4 तो भी वैरायटीज के फ्लावर्स, अलग अलग सीजन में फ्लोरिंग होने वाले प्लांट है। फायदा ही हुआ कि हर गांव क्लीन तो हो गया लेकिन घर भी क्लीन। तब बच्चों को उनके घर वालों ने बताया अच्छी पढ़ाई कर,
तो हमारे गांव के सब बच्चे इस तरह से आगे चलते। और ये देखो हिवरे बाजार जो है 15 जून की कोविड पेंडेमिक में सारे स्कूल बंद थे, ऑनलाइन चल रहे थे, लेकिन एकमात्र गांव था हमारा जो 15 जून को ऑफलाइन स्कूल शुरू हुआ, 15 अप्रैल तक था। बहुत पॉजिटिव निगेटिव हुआ, सीएम ऑफिस से प्रेशर, जिला पंचायत, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से हमने किया। 68 पॉजिटिव केसेस गांव में आ गए थे 2 अप्रैल को। जब देखा किसी ने कहा ऑक्सीजन प्रॉब्लम शुरू हो गई, 18 लोग करीबन वेंटिलेशन बेड पे गए थे। और जब ये देखा रेमडेसिविर ये सब, बाद में डर के कारण सब डर थे, तो हमने 6 बिंदु थे, 22 मुद्दे, उसके ऊपर 6 टीम, 22 बिंदु और 50 मार्च थे उसके। ये प्लान बनवा कोरोना मुक्त गांव का। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 15 दिन के अंदर ये सब बंद हुआ। 15 दिन के अंदर जोरों पे आ गए और मीडिया वालों को बुला लिया, देखो हमारा गांव कोविड फ्री हो गया। तो उन्होंने कहा आपके गांव में थे? मैंने कहा 68 थे। फिर कैसा हो गया? चलो हम एक पॉजिटिव मैसेज दे देंगे, क्योंकि डर के कारण लोग मर रहे थे। ये सब देखा, ऑक्सीजन बेड नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, ये सब हालात थे। जब मीडिया वाले आ गए तब ये न्यूज गई, सारे अखबार में इंटरनेशनल न्यूज बन गई, बीबीसी तक, ये कोरोना फ्री हो गया। और जब शुरुआत हो गई तो दूसरे दिन जब स्कूल में जब आ गए तो फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर आ गए, सिविल सर्जन आ गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला पंचायत, और हमने क्या तो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया था। वो कॉन्फ्रेंस यही था, 1300 पंचायत को जोड़ दिया, 30 मिनट मेरा टॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर चीफ ऑफिसर हेल्थ, ये सब पॉजिटिव। दूसरे दिन से पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हुए। और सेकंड डे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेड जोन वाले कलेक्टर से बात कर रहे थे, तब हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यही कहा हम हिवरे बाजार मॉडल से कोरोना फ्री कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने फोन भी आया, बाद में आदरणीय सीएम साहब का फोन आ गया, मंत्री जी का फोन आ गया, हम महाराष्ट्र में कैसा करें। फिर 2-8 नेक्स्ट वीक में महाराष्ट्र के सीएम साहब ने भी ये किया, डिवीजन वाइज कॉन्फ्रेंस, मेरा 20 मिनट का टॉक, फिर ग्रामीण विकास मंत्री जी, फिर सीएम, बस इस तरह से डिवीजन वाइज पूरे महाराष्ट्र में मूवमेंट हो गई। और ये पीछे वाला जो था ये डायरेक्टर जनरल है यशदा, जो महाराष्ट्र स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आगे डीजी 92 से मैं वहाँ गैस लेक्चर करके जाता हूँ। और पिछले 5 टर्म में मैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर। और यशदा यशवंतराव चौहान मैनेजमेंट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसके डीजी आए थे, वो गांव में चर्चा इस तरह से। और लास्ट मंथ 20 स्टेट के डेलीगेशन को सामने वाली मैम जो है वो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कुछ कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, कुछ मेयर थे, इस तरह से गांव में कि आपने किस तरह से हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन के ऊपर काम किया। और ये अलग अलग न्यूज में जो है तो कोरोना का ये सब था। और ये पीछे का देखो, अभी जो महाराष्ट्र के गवर्नर आदरणीय कोश्यारी साहब हमारे गांव में आके हिवरे बाजार, जो ग्रास कटिंग की शुरुआत इसको कौन से हाथों से की थी। बाद में उन्होंने कहा कि उनके पॉकेट मनी से 5 लाख रुपए स्कूल के बच्चों को दिया, और उन्होंने न्योता दिया कि आप राजभवन विजिट करने आ जाओ। खुद उन्होंने 150 बच्चों को लेकर हम गए थे, 3 घंटे तक बच्चों के साथ डायलॉग किया, और एक काफी अच्छी प्रेरणा बच्चों को मिली थी। और इस तरह से ये हमारा हेल्थ सब सेंटर है। अभी जो पीएचसी भी नहीं, BMA डॉक्टर वो आवास 8 लाख रुपए का टाइप प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन हमने 40 लाख रुपए का G+ बनाया। वहाँ रेसिडेंस हेल्थ वर्कर है, BMA डॉक्टर है। आज तो क्योंकि केंद्र और राज्यों के सरकार, डिस्ट्रिक्ट सरकार, ये क्या है जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं, उनके लिए गवर्नमेंट सिस्टम है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एनिमल केयर सेंटर हो। तो हमने इंडिविजुअल कुछ खड़ा नहीं किया, जो भी गवर्नमेंट सिस्टम उसको स्ट्रेंथन कर दिया। तो आज जो गरीब परिवार से लोग हैं वो सब टाइप का मेडिकल चेकअप यहाँ करवाते।
हीमोग्लोबिन का हो या शुगर का हो, हर साल अभी हम जो महिलाओं में 2 टाइप के कैंसर दिखते हैं वो उसके ऊपर अभी जन जागृति और टेस्टिंग का प्रयास किया। ये एनिमल केयर सेंटर है, ये मिल्क कलेक्शन सेंटर है। इस तरह से अभी रोड जो है ऐसे बने हैं, तो करीबन हमारा कंक्रीट का रोड बन गया 22 साल में, और 22 साल वो खराब नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज था मेंटेनेंस फ्री, तो आप 200 साल के बाद भी वो मेंटेनेंस फ्री। और हमारा जो कारपेट वाला ब्लैक कारपेट वाला रोड बनता है 16 साल हो गए, वो खराब नहीं होती। तो इस तरह से कई जिम है। अब जब 2012 में जयराम रमेशर जो एनवायरमेंट में मिनिस्ट्री के बाद ग्राम विकास मंत्री जी बन गए, तो हमारे गांव में आ गए। उनके अध्यक्ष कमेटी का भी मैं मेंबर रहा। जब गांव में आए, कहीं वो पीडब्ल्यूडी और सिटी में नहीं गए, उन्होंने कहा हम लीडरशिप और पोपट राव जी के क्लोन बनाएंगे। तो वो जब गांव में गए तो 24 इयर्स के बाद हमारा पहला रोड जो आशीष बस आ जाते वो अच्छा बन गया। तो रास्ता भी गांव में नहीं था। और ये महिला ड्रिंकिंग वाटर स्कीम मूवमेंट चला था, क्योंकि प्रॉब्लम उनके सामने होता है, जिनको कनेक्शन चाहे वो महिला के ऊपर मिल जाता है। घर की जो जिम्मा है मालकी वो महिला के ऊपर होती है। मंथली 100% ड्रिंकिंग वाटर टैक्स कलेक्ट होता है, और लास्ट 18 ईयर से पुलिस 71,000 उसके ऊपर जो है एक्सपेंडिचर है हमारा। मेंटेनेंस ही नहीं है, पिछले 18 साल से खाली 78,000, उसमें से 3,000 रुपीज पर मंथ वो जो केयर टेकर है इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ करना है पंपिंग का, उसका पेमेंट। और ये ऐसा है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा इस तरह चलती है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जो अलग अलग, जैसा कि गांव में लड़ाई झगड़े, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग गांव में आकर रेशन कार्ड आपको चाहे पेपर पंचायत में दे दो, 5वें दिन आपको रेशन कार्ड आपके घर में आ जाएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहे पूरे पेपर पंचायत में दे दो, फिर आरटीओ ऑफिस जाता है, और एक डेट आरटीओ खुद बताता है कि लर्निंग का जो ट्रेनर काम करना है, लर्निंग का ट्रायल हम मुरे बाजार गांव में करते हैं। तो इस तरह से लोगों को जो भी कुछ इंडिविजुअल है, और ये लैंड रिकॉर्ड से लेके अभी बहुत सारी समस्या हमारे देश में, क्योंकि 1929-30 में हमारा 7/12 बन गया था, तो अभी लैंड होल्डिंग कम हो रहा है। डिवाइडेशन ऑफ फैमिलीज के कारण सब बाउंड्री और जाने वाले रोड के ऊपर चला रहा है, और वो विलेज में पंचायत इलेक्शन और कोऑपरेटिव इलेक्शन में आ जाता है, उसके कारण गांव में लड़ाई झगड़े। नेक्स्ट 10 साल में हर घर में पुलिस वाला या एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। इतनी सारी प्रॉब्लम लैंड रिकॉर्ड से लगी हुई। लेकिन हमने पहला प्रयास किया 2004 में, 80% लैंड रिकॉर्ड का ठीक से ना मेजरमेंट किया। अभी कोई डिस्प्यूट नहीं, अभी 20% बाकी है, वो भी बन जाएगा। और ये जो बिफोर मैरिज का भी 2004 में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले लड़की ने लेटर दिया था कि शादी के पहले ब्लड ग्रुप करवाओ। तो आज देख रहे हैं हम कि ब्लड उसका रिपोर्टिंग शादी के पहले कितना जरूरी है। एनीमिया हो, साथ साथ HIV का भी है, उसके साथ साथ कई थैलेसेमिया जैसे प्रॉब्लम है। ये क्या, जब मैंने वो लड़की को पूछा क्यों लेटर दिया, तो उसने कहा कि लास्ट ईयर मेरे मौसेली बहन की शादी हो गई, आज वो पॉजिटिव प्रेग्नेंट है, लेकिन 4 दिन पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, क्योंकि शादी के पहले वो HIV थे। और मुझे लगा मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो अपना हमारे गांव में ये शुरुआत होनी चाहिए बिफोर मैरिज। हमने सारी लड़कियों की मीटिंग, फिर वुमेन की मीटिंग, और ग्राम सभा में पहला निर्णय हुआ हम शादी के पहले ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। हार्ड एंड फास्ट नहीं, क्योंकि कई टाइम प्रॉब्लम भी आ जाता है, लेकिन सोल्यूशन निकाल के हम आगे चल जाते हैं। तो इस तरह ये ग्राम सुरक्षा का ज्वाइंट डायरेक्टर थे IPS वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के सेंट्रल में, क्योंकि मैं भारत सरकार के इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट स्टेट नेशनल कमेटी का मेंबर भी, वो यूरे बजा रहे थे। अभी 30 सेकंड का मैसेज जाता है, वो जंगल में आग लगती थी तब हम यूज करते थे। 800 मोबाइल कनेक्ट, मैं पोपट राव पवार, चाहे मैं गांव में हूं नहीं, जो कोई हो उसको पता चला तो मैसेज देता है। 30 सेकंड का कॉल जाता है, 800 मोबाइल कनेक्ट। विद इन 10 मिनट्स 100 यूथ जंगल में जाते हैं और जंगल की आग कंट्रोल करते हैं।
इसका फायदा ये हुआ कि बिफोर डेवलपमेंट 95 ह्यूमन माइग्रेशन था, लोग गांव छोड़ के शहर जाते थे। अभी साउथ अफ्रीकन बर्ड्स माइग्रेट होकर हमारे तालाबों के ऊपर आ जाते हैं। सब खाली टाइगर नहीं, लियोपार्ड तक हम वाइल्ड लाइफ साइकिल डेवलप, क्योंकि ये सारा जंगल उनका घर था, इकोसिस्टम कोलैप्स कर दी करके टाइगर हो या लियोपार्ड है वो हमारे गांव में आ जाता है। तो हमने वो बनाया कि उससे कोई डर नहीं, गांव में कोई परेशानी, क्योंकि जंगल में उसकी हंटिंग नहीं है, उसका खान पान सुरक्षित है करके वो गांव में नहीं आता। और ये देखो किचन फॉरेस्ट हमारा 25-30 साल के बाद मेरे सामने यही आया कि हमारे ह्यूमन वैल्यूज और साथ में हैप्पीनेस की बात हम कर रहे हैं, खुशी कब मिलेगी? तो हमारा किचन में गड़बड़ी, किचन फॉर टेस्ट है और इसी कारण हेल्थ के प्रॉब्लम है। हमारे दादा दादी 100 साल जिए, कभी बीमार नहीं हो गए, लेकिन आज बच्चा जन्म लेता है तो शुगर लेके आता है, हार्ट डिसीज लेके आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्यों है? अभी 2 महीने दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने और नीति आयोग ने मीटिंग करवाई, करीब 800 ऑफिसर थे ऑल ओवर इंडिया से। तो किस तरह से हमें नेक्स्ट 10 ईयर का प्लानिंग करना, तभी मैंने इतना ही कहा था मेरे टॉक में कि 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आजादी के, तो खाली पंजाब का एग्जाम्पल सामने रखो और 100 साल की आजादी के 25 साल का प्लानिंग करो, सारी समस्या हमारे सामने आ गई। जिस पंजाब की मिट्टी ने और पानी ने पूरे भारतवर्ष की फूड सिक्योरिटी की, आज वो पंजाब खुद की फूड सिक्योरिटी करेगा नहीं, ये डर है। कई बार जाता हूं मैं पंजाब, अभी भी ऋषियोड़ यूनिवर्सिटी में गया था मैं, गुड़गांव, और वहां जब देखा दादा उनका जमाना, बच्चे का जमाना और नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन परेशान। पहली बंद वाटर गुड़गांव में आ गई, अभी मोर देन 45 या 50,000 करोड़ रुपए हमारा पानी का बिजनेस, कि जो देश दुनिया को कहता है सिंहस्थ कुंभ मेला, यह जल पूजन का उत्सव है। और आज सॉइल हेल्थ तो इतनी खराब हो गई, और पंजाब में हम देख रहे हैं कि पंजाब में ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी तो खराब हो गई, सॉइल हेल्थ भी खराब हो गई। और जब चंडीगढ़ जाते हैं टिकट लेने के लिए तो कैंसर ट्रेन का टिकट दे दो बोलते हैं, बठिंडा जाने वाली ट्रेन, एक कैंसर की ट्रेन चल रही 75 साल में पंजाब में, और आमदनी बढ़ गई, इनकम बढ़ गया, हम नशे की ओर जा रहे। उड़ता पंजाब फिल्म आ गई, अभी लाल सिंह चड्ढा जो आमिर जी ने रिलीज की, और 2 महीने पहले उनके घर उन्होंने जब बुलाया, पोपटराव जी एक ट्रायल हम लाल सिंह चड्ढा की कर रहे, आप आ जाओ, बस एक 30-40 लोग थे अलग अलग फील्ड के। तो उसने आर्मी का बैकग्राउंड, दादा पर दादा से लेके आज तक 10 रुपए के लिए घरवाली की पिटाई करने वाला शराबी, और सॉइल हेल्थ के कारण उनकी वाइफ और उनकी माँ का कैंसर से देहांत होता है। काफी अच्छा थीम उसमें लिया था, 75 साल नहीं हुआ, और 600-700 फीट जमीन के नीचे जाने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा। हम तो कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं ड्रॉप डाउन एरिया में, और पंजाब वाटर ड्रेन करने की बात कर रहा है। 5 नदियों से समृद्ध था पंजाब हरियाणा, इतना पानी का मिसयूज किया, फर्टिलाइजर, केमिकल, ये सब, तो आज सॉइल हेल्थ, ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बिल्कुल खराब हो गए, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो काम होना जरूरी था वो नहीं हो रहा, क्योंकि सॉइल हेल्थ में अभी रिचार्ज ही नहीं हो रहा। इस तरह से सब देखा तो हम गांव में प्रयास करें, और जिसके घर में निरोगी और निर्व्यसनी कोई है तो वो घर आगे का सबसे ज्यादा हैप्पीनेस वाला घर होगा। तो इस तरह से हम गांव में प्रयास कर रहे हैं। 2000 अभी कोविड के कारण थोड़ा रुकावट आ गई, नहीं तो 2025 तक ये भी परिवार से कोई हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, ऐसा डाइट प्लान हम गांव का करें, तो ही डेवलपमेंट की साइकिल पूरी हो जाए। अब मुझे पता नहीं कि टाइम कितना है मेरे लिए, तो इम्पोर्टेंट सोशल लाइफ में जो है इकोनॉमिकल स्टेटस जो है गांव का 22 to 476 जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्रेडिट एबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज परचेस पावर जो बढ़ गई, साथ में कुछ, तो ये जब अनाउंस हुआ 2007 से जाता था, लेकिन 2007 के बाद
मैंने देना बंद कर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते थे आपका नॉमिनेशन मुझे नहीं करना, क्योंकि हम फंड पैसा और अवार्ड के पीछे कभी चले। जब 2020 की अनाउंसमेंट हो गई पद्म अवार्ड की, 12 को दोपहर को 11-12 बजे होम मिनिस्ट्री का फोन आ गया कि 40 लोग बैठे, लेकिन किसी को मैंने बताया नहीं जब अवार्ड, और शाम को 6 बजे पता चला तो मेरा नॉमिनेशन ICR में किया था, मुझे पता ही नहीं। तो देश का पहला सरपंच हूँ जिसे पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया और राजभवन जाने का मौका अवार्ड हो, फर्स्ट इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट अवार्ड हो, फर्स्ट नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अवार्ड हो, साथ साथ ये बहुत सारा फर्स्ट नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का है, फर्स्ट सन गाड़ीवा बजू सैनिटेशन मास्टर के, तो बहुत सारे हैं। इस तरह से जो अलग अलग अभी जो डॉक्टरेट का है, और ये देखो रिसेंटली जो है तो वो ह्यूरे बाजार अभी 2 दिन पहले आ गए थे US से, वो एक प्रोफेसर का नाम थोड़ा भूल गया था मैं, एंड्रू मिल्सन करके ओरेगोन यूनिवर्सिटी से, वो 300 दिन अध्यापन का काम करते हैं और 60 दिन जो है वो दुनिया भर घूमते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, इकोसिस्टम का चीजें। 2 दिन पहले आए थे और वो फिल्म बनाते और अपने बच्चों को बताते हैं, कहते हैं कि फ्यूचर हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है तो किस तरह से हमें नेचर के साथ चलना है और ह्यूमन वैल्यूज किस तरह से बढ़ाना जरूरी है। तो 2 दिन पहले गांव में आ गए थे वो दोनों वाइफ और वो गांव में जो टॉप का पहाड़ी है, तो वहां पर टॉप पे जो पहले तो ग्राउंड वाटर इतना नीचे था, अभी 31 मई को एक बार फोन करेंगे तो आपको पीने के लिए पानी मिलता है। तब अभी नेक्स्ट मंथ वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे आपके गांव के ऊपर एक फिल्म बनाना, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के लिए भी वाटर मिरेकल विलेज करके फिल्म सिलेक्ट हुई थी। तो इस तरह से गवर्नर का हो, एक्स गवर्नर विद्यासागर राव जी हो या अभी के गवर्नर है, या अलग अलग जो 6 कंट्रीज के मिनिस्टर थे, अभी 26 मई को लास्ट ईयर सर एशियन कंट्रीज के मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी प्लानर्स थे, वो गांव में आ गए थे। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के आधार पर आपने माइग्रेशन और भूख को कैसे हटा दिया उसका स्टडी करने आए थे। और अलग एक 20 स्टेट सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो ह्यूरे बाजार आए थे अभी सभी ऑल ओवर इंडिया से डेलीगेशन गांव में आए थे। तो ये जो 93 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए गाइडलाइन बनानी थी, तो उसको क्या आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी के क्लोज के थे, ये प्रोफेसर थे CH हनुमंतराव, उनकी कमेटी बन गई थी 93 में, तब वो गांव में आ गए थे। और तब हमें टॉप का जंगल प्रोटेक्ट करके वाटर लेवल बढ़ाया था और सॉइल इरोजन कंट्रोल रोकने का प्रयास किया, तभी उन्होंने विजिट की थी। और ये एल्डर ब्रदर है, यस गवर्नर थे महाराष्ट्र के विद्यासागर राव उनके। तब जब वो विजिट करने आए तब उन्होंने क्या हैदराबाद के साइंटिस्ट का पता है क्या, मैंने कहा CH हनुमंतराव, तो उन्होंने कहा चौक गए, वो कैसे पता आपको, वो तो सर 93 में आके गए थे। जब उन्होंने बताया वो मेरे एल्डर ब्रदर थे, जब उनको 2 साल पहले जाने के पहले जब वो राजभवन आए तब आदरणीय गवर्नर सर का फोन आया कि आज डिनर के लिए आ जाओ राजभवन, तो मेरे बड़े भाई आ रहे। तो ये बात है कि ये विजिट को ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 93 की फोटो है, ये बहुत बड़ी जो मनरेगा आज हमारे देश में लॉन्च है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जब 2008 में रघुवंश प्रताप सिंह जी गवर्नर मंत्री जी थे ग्रामीण विकास, तभी इसके लिए उन्होंने स्टडी ग्रुप और उसके लिए मीटिंग बुलवाई थी। अब मुझे मौका दिया था एक प्रेजेंट है, तभी मैंने कहा नो नीड ऑफ मनरेगा, तो उन्होंने क्या ऐसा कैसा हो सकता है, मनरेगा की जरूरत नहीं सर, हमने स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का डिजाइन ही ऐसा किया, फॉरेस्टेशन, ग्रास डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर टेबल बढ़ गया, बैंक का सपोर्ट आ गया और गांव में गरीबी हट गई, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 14 उन्होंने अनाउंस किया, बस इंडिया का पहला जॉब कार्ड का लॉन्चिंग हम ह्यूरे बाजार से कर रहे हैं, तब वो आए। तो नेशनल लेवल की पॉलिसी लेवल तक अभी ह्यूरे बाजार का रोल है। तो अलग ही आदर्श जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ये 7 सूत्र के आधार पर अभी विद इन 2 इयर्स 2 साल में अभी पहला किंगगांव, दूसरा पलसखेड़ा दवनगांव करके, आपको पता है कि मेरठ से लातूर एक ट्रेन गई थी, वो थे ड्रिंकिंग वाटर के लिए।
जो लातूर में सूखा था, ट्रेन से पानी गया था। अब उसी एरिया में ये गांव बनाया आदर्श ग्राम में। अभी इस गांव में पानी की प्रॉब्लम नहीं, वाटर सफिशिएंट विलेज बन गया। और 97 में उस वक्त में लातूर में वाइट गाना दयानंद कॉलेज में टॉक के लिए गया था एनएसएस के। तब मैंने कहा था, वो ब्रॉड गेज का काम चल रहा था, तो ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा डेट ये लातूर डिस्ट्रिक्ट में। तब मैंने कहा, अगर हम ग्राउंड वाटर ठीक से मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ट्यूबवेल को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में ये रेल ड्रिंकिंग वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। ये 97 की बात थी। और जब प्रभाव तो दोनों भी जो पेपर न्यूज थी वो सामने, तो ये गांव मॉडल बन गया। और ये देखो गांव के लोग इस तरह से श्रमदान करते हैं, इस तरह से लोग ग्राम सभा में आ जाते हैं। स्पेशल स्टेट बजट से 5 कमिश्नर मेरे अध्यक्षा में जो कमेटी है स्टेट के मेंबर्स है, और काफी अच्छी ग्राम सभा की मदद से। और ये भी है 2016 में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तभी कारपोरेट सपोर्ट से विलेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक बात काफी अच्छा वक्त था। तो सीएम साहब ने ये कहा, पोपटराव जी आपने जो इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम किया है, बस हम 1000 विलेज में करेंगे। तब ये संगठन अमिताभ जी, आनंद महिंद्रा जी, देवेंद्र जी, रतन टाटा जी पास में मैं बैठा हूँ, और 11 नीता अंबानी जी, ऐसे 11 लोगों का और ट्रस्ट है। सीएम प्रेसिडेंट जितने फेलो सिलेक्ट हुए विलेज और डिस्ट्रिक्ट एजेंसी, इसका ब्रीज करके उनका सारा ट्रेनिंग एवरे बाजार में हुआ। और लास्ट की जो 25 विलेज, उसका सिलेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी मैंने किया था, और काफी अच्छे रिजल्ट आ गए। ये अमीर जी गाँव में आ गए थे। मैं खुद का तो करियर नहीं बना सका क्रिकेट में, लेकिन क्रिकेट का जो गॉड है, जो मिसेस डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर जी हमारे गांव में आके गए, उनके ट्रस्ट जो है उनका, वहां भी हमने मदद की। सचिन जी आने वाले थे, कोविड का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन उन्होंने चाय के लिए घर बुलाया, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी। क्रिकेट का गॉड जो है चाय के लिए बुलाता है, तो चलो खुद का करियर नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा था कि हिवरे बाजार तो ये पोपटराव पवार ऑफ ग्रामीण विकास के सचिन तेंदुलकर। अब ये एशियन कंट्री का था यूके में। किस तरह से 2 ही टॉक थे। फर्स्ट डे को था ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी मेकर थी डॉक्टर मारिया करके, अर्बन एरिया में वाटर मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट कैसे होनी चाहिए, फिर डिस्कशन। और सेकंड डे को मेरा था कि रूरल जो हमारा एरिया है उसमें लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट कैसे होनी चाहिए। ये थोड़ा अभी की जो फोटो से वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के इम्पैक्ट की जो आई, इनका जो इंटरनेशनल संगठन इम्पैक्ट, तो कोविड के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चीफ गेस्ट करके बुलवाया था। और जब कोविड के पहले एक साल वहाँ टॉक केला सत्यार्थी जी और मैं वो टॉक के लिए था। ये मेरे लिए बाकी ये हमारे IAS अकादमी जो है यूपीएससी लास्ट ईयर 90 के बैच के साथ बात करने गया था मैं मसूरी। और ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले 10 साल से समग्र नर्मदा जोड़ा, तो ये एनवायरमेंट डे के वक्त पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरे स्टेट में उन्होंने प्रोग्राम, खाली मेरा टॉक था। और एक मुख्यमंत्री जी ऐसे है कि वो नर्मदा का 6 महीने की यात्रा की उन्होंने, और रोज एक गांव में ग्राम सभा, जो सदियों से हमारा प्लांटेशन था वो खत्म करके यूकैलिप्टस और इसका इकोसिस्टम कोलैप्स हो गई। अभी वो गंगटोक से लेके गुजरात बॉर्डर तक नर्मदा का परिक्रमा करके उन्होंने बस हमारी सदियों से पुरानी जो सिस्टम थी उसको हम डेवलप करेंगे। तो ये एक रिसेट का था। एक मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिवरे बाजार के ऊपर टॉक किया था, और ये अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार का। अभी पंचायत हो, इन्वायरमेंट हो, वाटर कंजर्वेशन हो, और कारपोरेट के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सारे CSR हेड गांव में आके जाते हैं। कई बार दिल्ली बुलाते हैं, तो कारपोरेट ने किस तरह से अपने फंड से एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज और अच्छी इकोसिस्टम हो या सैनिटेशन का गांव करना चाहिए। ये पैसों का हिवरे बाजार ऐसा बिल्कुल ग्रीन बन गया, ऑक्सीजन टूरिज्म विलेज। लेकिन हमारे गांव में जो है तो गांव की जमीन बाहर वालों को बेचना मना है, क्योंकि आजादी मिल गई तब हर गांव फार्म हाउस था, इकोसिस्टम काफी अच्छी थी, पोल्यूशन नहीं था। अभी गांव तो कोलैप्स हो गए, लेकिन सारी जो रेंज है हमारी कोकण रेंज 720 किलोमीटर की,
फार्म हाउस के कारण डिस्टर्ब हो गई और इसके कारण मानसून डिस्टर्ब हुआ और हिमालय में जो गड़बड़ी शुरू हो गई तो इसका प्रभाव जो पहले तो अंडमान से निकला हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी में आता था, फिर केरला में आता था, फिर गोवा पणजी में आता था, फिर कोंकण में आता था, बराबर वो चलता था। रिटर्न मानसून भी सही वक्त पे आता था। कभी मुंबई वालों ने स्वेटर नहीं पहने थे। पिछले साल और इस साल आपने देखा फर्स्ट टाइम विंटर सीजन मुंबई वालों ने महसूस किया। केरला में देखा, चेन्नई में देखा, हमने बेंगलोर में देखा, पुणे में देखा, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, मुंबई की मीठी नदी का देखा। क्योंकि माइग्रेशन के कारण सारे आउटलेट ब्लॉक हो गए हमारे और इसके कारण अभी ड्रेनेज छोड़ के जो पानी है बाढ़ का सीधा अभी सिटी में जा रहा है। पुणे की जो लक्ष्मी रोड है तो मार्केट की बहुत बड़ी प्लेस है। ये टाइम 3-4 महीने पहले वो मुला मुठा का पानी वो सीधा अंदर घुस गया था क्योंकि पहले 59-60 डेज का रेनफॉल अभी 35 या 40 डेज के ऊपर आ गया, डबलिंग होगा और इसके कारण बूंद की साइज बढ़ गई और इसके कारण बाढ़ की समस्या जहां कहीं देख रहे हैं हम देख रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है और अभी हमारा 75 ईयर्स सेलिब्रेशन का ये ब्रिगेड बनाया तो इस तरह से गांव भी खुद का अपना इसमें 20 लाख रुपए गांव वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक राज्यसभा सदस्य उन्होंने कुछ दिया था और गवर्नमेंट का कुछ और गांव का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें ऊपर महाराष्ट्र का जो प्रेरणा है छत्रपति शिवाजी राजे उनकी जिजाऊ माँ साहब छत्रपति छोटे थे, अभी स्वर्ग से बात कर रहे थे। वो बात यह है कि क्या सपना देखा था हमने हिंदवी स्वराज का, यही था कि जो यूरे बाजार में देख रहे हैं। और दूसरी इनर साइड में फोटो नहीं दिखा सके, उसमें 2 डायलॉग है। कलकत्ता में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दोनों डायलॉग कर रहे थे क्योंकि दोनों का शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने, राष्ट्रपिता ने नमक उठाया था और नेताजी ने बंदूक उठाई थी। दोनों का रोल उतना ही है आजादी की लड़ाई में, तब वो दोनों स्वर में बात कर रहे हैं। तो गांधी जी यही कहते थे नेताजी आप सही थे बंदूक उठाई, तो पंजाब और जर्मनी सपोर्ट में आ गए और नेताजी ने कहा नहीं बापूजी आपने जो नमक उठाया था वो भी सही था, नमक के कारण जमीनी स्तर के लोग जुड़ गए और बंदूक के कारण बाहर वालों ने सपोर्ट किया और हमारे इंडिया में आजाद हिंद सेना ने जो माहौल तैयार किया इसके कारण अंग्रेजों को भागना पड़ा। यही हमारी प्रेरणा है। इस तरह से मुझे लगता है जो प्रयास हमने यहाँ किया है, एक गांव बन गया, महाराष्ट्र में 100 गांव बन गए। पानी फाउंडेशन से लेके करीबन 20,000 विलेजेस पे मूवमेंट हो गई और कारपोरेट सपोर्ट से करीबन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जैन सोशल फाउंडेशन भी महाराष्ट्र में काफी अच्छा प्रयास कर रहा। मुझे लगता है एक पंचायत के सरपंच अभी रिजर्वेशन मूवमेंट के लिए करके मैं डिप्यूटी सरपंच बन गया। मुझे काफी अच्छा अवसर भी मिला था विधान भवन जाने का या संसद भवन जाने का। ज्यादा प्राउडली ये नहीं कहना चाहता हूँ, ये गलत रहेगा, लेकिन जब मैंने राजनीति में जाने का प्रयास किया तभी आउटसाइड से गांव में इंटरफेरेंस हो जो एक आदर्श और पीसफुल गांव बन गया था। फिर इलेक्शन गड़बड़ी हो गया और सपोर्ट करने वाले लाइन डिपार्टमेंट अपोज करने लगे क्योंकि उनको ट्रांसफर का डर लगा, तो पुलिस वाले मदद, उसके कारण फिर शराब गांव में आ गए। बाकी शुरू हुआ तब मैंने देखा 68 की जगह में 58 हुआ और इतना अच्छा गांव बन गया क्योंकि एक पार्टी को सपोर्ट किया तो 4 पार्टी अपोज हो गई। अच्छा फ्रेंड थे, दिन रात को गप्पा करते थे लेकिन दिन को प्रॉब्लम क्रिएट करते। जब देखा खुद का पॉलिटिकल करियर करना है या गांव का फ्यूचर बदलना है तो बस मैंने 95 में जो मौका मिला था मुझे विधानसभा में जाने का वो रोक दिया और गांव के साथ काम करने का प्रयास किया। और आज यूरे बाजार सभी पार्टी के स्टेज पे जाकर 2009 में 14 मार्च 2009 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी और डिप्टी सीएम मणि जी हमारे गांव में आ गए थे। कांग्रेस सरकार ने उनको 5 करोड़ रुपए दिया, 5 लाख रुपए दिए थे हमारे गांव के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। तब उनकी एनजीओ की सारी टीम थी
3-4 दिन थी। 25 अप्रैल 2010 को आदरणीय सोनिया मैम ने उसका लॉन्चिंग विज्ञान भवन में किया और दिल्ली में पहली मोहल्ला सभा मुझे लेके अरविंद जी ने शुरू। आज भी वो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन 2011 में जो आंदोलन अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, तो अन्ना जी और मेरे क्लोज अच्छे रिलेशन, लेकिन उनके राइट टू इंफॉर्मेशन ये सब आरटीआर इसमें मैं कभी नहीं, क्योंकि मैंने ब्रैकेट बनाया जो हमारे रिलेटेड है बस उसके ऊपर टॉक करना है, जो किया ना उसके ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि डेवलपमेंट एक रास्ता है और आरटीआर और राइट टू इंफॉर्मेशन अलग है, दोनों अपने जगह पे सही है, लेकिन उसका बात अलग अलग है। तो मैंने जब लास्ट पीछे 2-3-4 दिन में 11 में जो काम किया, क्योंकि अन्ना जी के अच्छे क्लोज है, तो अन्ना जी को बताया प्रॉब्लम क्या है, अरविंद जी और जो बदला होगा उससे काफी अच्छा रिजल्ट हुआ गया था, ज्यादा आगे नहीं। तो इसलिए जो प्रयास मैं अभी कर रहा हूँ, तो पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ, सभी हर महीने में 1 या 2 बार दिल्ली में जाना होता है, अलग अलग कॉलेज, और हर साल 10,000 से ज्यादा यूथ में मैं जाता हूँ, क्योंकि हम सबके सामने जो आदर्श था, एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जब वो 2004 में प्रेसिडेंट है, तभी उन्होंने अलग अलग फील्ड में काम करने वाले 50 लोगों को डिनर के लिए इनवाइट किया था, उसमें मैं भी एक था। वो मेरा भाग्य था, सौभाग्य। 2 बार उनकी विजिट तय हुई थी, लेकिन कुछ कारण हुआ, और लास्ट में जब उनकी एग्जिट हो गई नॉर्थ ईस्ट में, तब वो यूथ और इंजीनियर्स के साथ बात करने जा रहा है। तभी मैं एक अनुरोध यहाँ करूंगा, जो कि ह्यूमन वैल्यूज के लिए ये संस्थान का स्थापना हुआ 1965, और ये IIM का स्थापना भी 92 में हुआ। अब ये हुआ तो उसके पीछे यही, जिस ये 4 पिक्चर हम देखते हैं, यही हमारा भारत का फ्यूचर है। तो इससे लेके जो काम करना है, चाहे IT हो, IIM हो, या UPSC करने वाला IRS, IPS या IAS, सभी ने अगर ऐसा टेक्निक ढूंढना चाहे, पैसा तो कमाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा फ्यूचर जो है, हमारे रिसोर्सेस, उसको भी हमको जोड़ना बहुत है, क्योंकि अभी हिमालयन वैली में जो रिटर्न है 95 में जब पहली बार देखा, प्यास लग गई तो बंद बोतल से पानी नहीं पिया, मैं ऐसा ऊपर करके वो झरने का स्प्रिंग वाटर पिया, बहुत मजा आया। जब लास्ट ईयर चला गया मैं 6 दिसंबर वहां था मसूर में, तो देहरादून से पानी ऊपर आ रहा था टैंकर। अगर हिमालयन रेंज के अगर स्प्रिंग वाटर खत्म हुआ, तो देखो हम सबका भविष्य तो कर रहे हैं। मुझे कैलाश मानसरोवर भी जाने का मौका मिला, जब वहां देखा भगवान शिव जी ने जटाओं में लिया गंगा जी को, और राजा भगीरथ ने पहला टॉप टू बॉटम रिज टू वैली कंसेप्ट से वाटर शेड बनाया था। और देखो जो मानसरोवर है हमारा, करीबन 33 नदियां निकलती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चाइना, सभी का मेन सोर्स है पानी का वो मानसरोवर है। और वहां जब मैंने उस वक्त ऑक्सीजन ये सब था, लेकिन मैं तय करके गया था, तो ये भी डुबकी लगाएंगे, क्योंकि हमेशा मेरे टॉप में 5500 साल पहले राजा भगीरथ ने स्वर्ग की गंगा को गोदो खुलाया था। हम आज ये ड्राउट फेस कर रहे हैं तभी से, लेकिन उस वक्त ह्यूमन वैल्यूज काफी अच्छे थे राजनीति में और एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छी थी, जो रिसोर्सेस को जल, जंगल, मिट्टी और जानवर, इनको साथ लेके चलने का राह दिखा था। जब हम पैसा कमाने के चक्कर में जो पैकेज को और चले गए, हम तो IIM, IAS सब बन गए, और पैकेज के चक्कर में हमने रिसोर्स को सपोर्ट करना, इसको संभालना, उससे दूर हो गए। अब इससे 500 ईयर से जो भी हमने नए इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमाइज सब यहाँ पे रिमोट रोबोट तक आ गए, तो अभी अगर प्लैनेट ही नहीं बचा तो हम सब क्या करें? इसलिए हमें जो पहला काम करना है, ह्यूमन वैल्यूज को और स्ट्रेंथन करना है। इसलिए ऐसा तकनीकी ढूंढो जो अभी हमारे सबके खुशी की और जो हैप्पीनेस का GDP है
पैसे से नहीं आएगा, अच्छी हेल्थ और मेंटली फिटनेस और एक दूसरे को कोऑपरेट करने का नेचर, इस तरह के अच्छे यूथ बाहर आ जाए तो जो भारत को पूर्वी जो गौरव था वही गौरव देने का प्रयास करेंगे। इसी दो शब्दों के साथ मैं मेरे बात को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्ते, जय। Thank you very much, sir, for such enormous work and enlightenment for us. I think if there are some questions, we can take one or two. It's been very prolonged and detailed. Is there any question? Okay. सर, मैं कोलकाता से, आपको कुलेखाड़ा के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? नॉलेज तो है लेकिन इतना डीप नहीं है। अच्छा, लेकिन कोयला आपको कुलेखाड़ा एक साग है। हाँ, वो आपने न्यूट्रिशन के बारे में बताया ना। हाँ, आप जुड़े हुए हैं। हाँ, तो वो होमोग्लोबिन बहुत बढ़ाती है, तो वो आप अपने यहाँ इनपुट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से कुलेखाड़ा पंजाब लेके जाने के लिए, पर मैं सक्सेस नहीं हुआ। बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजी गांव की तो सब मिलेट को लेके जा रहे हैं। नहीं, कुलेखाड़ा एक मेडिसिनल प्लांट है। उसको वो यहाँ पे कोलकाता में हर बाजार में 5 रुपए का मिलता है। वो ब्लैक कलर का होता है ना? नहीं, वाइट ग्रीन कलर ही है। ठीक है, ठीक है। तो उसका सीड और प्लांट नहीं, सीड नहीं है सर, वो पौधा ही है। उसको काट के वैसे ही लगा दो तो कलकत्ते में ऐसे जंगल हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन पंजाब में नहीं होता है। लेकिन क्या है कि तो ये अच्छी चीज अगर कहीं और बढ़ जाए। आज मेन क्या ना, हम लोग ट्रेडिशन के साथ जुड़े हुए नहीं है। हमारी दादियों ने जो चीज बताई है, हम लोग उसके साथ जुड़े हुए नहीं। आगे दादियाँ क्या करती थी, अच्छे बच्चे को ये हुआ तो ये कर लो, ये कर लो। तो कुलेखाड़ा से मुझे बहुत फायदा हुआ है, होमोग्लोबिन बढ़ता है। तो पंजाब में हर बंदे को होमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं वहाँ सोल्यूशन नहीं दे सका। आप कहीं पे भी अगर सोल्यूशन दे सकते हैं तो ये मतलब, क्योंकि आपकी तरफ से हमेशा सोल्यूशन मिलता है। जस्ट ये मैं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो ग्रो करता है वही प्लांटेशन होना चाहिए, वही। तो अगर ये वो है, पर आप अगर रिसर्च करके कुछ कर सकते हैं तो उसके बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपको नाम याद रखिए, कुलेखाड़ा। हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें वो प्रयास करेंगे हम। अगर वो सक्सेसफुल है ड्राउट प्रोन एरिया में तो 100% वो करेंगे, क्योंकि ग्रेट रिवोल्यूशन में यही हुआ कि हमने रेशमी के ऊपर मिलेट नहीं दिया, हमने खाली व्हीट और राइस दिया। और आज भी कल अच्छा बजट हुआ मिलेट के लिए। तो मुझे लगता है जब तक गवर्नमेंट वो रेशमी के ऊपर मिलेट को नहीं देगा तब तक वो मिलेट के लिए अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। आगे इनको पोदरा की रोटी होती है, किसी को पता नहीं पोदरा क्या है। हम लोग गुरु ग्रंथ साहब में, अगर हम लोग पुराने पुराणों में जाएंगे ना, वहाँ पे सब कुछ है। करेक्ट। वहाँ पे लिखा हुआ पवन गुरु पानी पिता माता तत्मा। पवन गुरु है, लेकिन हम लोग फायरवर्क्स बना रहे हैं। और मजे वाली बात है, गोल्डन टेम्पल में फायरवर्क्स हुआ और डेली वही पढ़ रहे हैं, पवन गुरु पवन गुरु। और हम लोग उसके उद्देश्य में तो वही है कि हम लोग को अभी ग्राउंड लेवल में कैसे किस हिसाब से जोड़ा जाए, किस हिसाब से किया जाए। टीचर है, आपके विचार सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ। भगवान आपको और स्वावलंबी करे और आपके जैसे और बंदे बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपके पूरे जीवन का काम है और मुझे लगता है कि जैसे मैं इसको सुन के प्रभावित हुआ, बाकी लोग भी प्रभावित हुए होंगे सुन के। तो पहले तो उन्होंने बोला मुझको आपको हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद भी देने के लिए, तो धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। दूसरी मेरी कुछ जिज्ञासाएँ थी। एक जिज्ञासा थी कि ये गाँव के लेवल पे, और मैंने आपको थोड़ा रिसर्च भी किया, तो अनुशासन को आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और उसमें एक मैंने ये भी देखा कि अब जैसे आपके गांव के लोग अपनी जमीन कहीं बेच नहीं सकते हैं, तो कहाँ अनुशासन खत्म होता है और कहाँ पाबंदी शुरू होती है,
इस विषय में मेरी थोड़ी जिज्ञासा थी। दूसरी बहुत मज़ेदार जिज्ञासा थी कि आपको इतने साल बिना विरोध निर्विरोध चुने गए, लेकिन पिछली बार आपको इलेक्शन लड़ना पड़ा, आप जीत गए, वो क्या हुआ गाँव में कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ा? बहुत अच्छे सवाल जो मेरे टॉप में नहीं आ गए तो अपने से आ गए। पहला ये था कि गांव में अनुशासन खत्म हुआ और जब पैसा नहीं था, स्कीम्स नहीं थी, तब अनुशासन था, क्योंकि लोग लिटरेट नहीं थे लेकिन वो सुसंस्कारी थे, कल्चर थे, वो रिसोर्सेज सब एक दूसरे का भाईचारा ये सब करके जीते थे। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट के फंड्स गांव में आने शुरू हो गए तो जो सो गए थे वो जाग गए और इसी कारण अनुशासन खत्म हुआ। और दूसरी बात है, जब इनकम बढ़ता है तो नशा की ओर चले जाते, ये दुर्भाग्य, क्योंकि हम संस्कार नहीं देते। आज देख रहे हैं सब छोटे छोटे बच्चे जो कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो या जयंती पुण्यतिथि हो या इलेक्शन कब आता है, बस उस वक्त नशा करने का मौका मिलता है और इसके कारण घर परिवार में गड़बड़। एक तो जब भगवान का वास था तभी पॉजिटिव निगेटिव था, जब राक्षसगण थे वो भी नशापान सुरापान करते थे, लेकिन वहां संस्कार का प्रभाव ज्यादा था। लेकिन आज क्योंकि संस्कार राजनीति से आते और जब गांव का हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या सेंट्रल, तो हमारे सामने ये सब आजादी की लड़ाई तो हमें आदर्शों के सामने वो सब देख के ही लड़ी थी। लेकिन आज जो आदर्श जो है ये थोड़ा प्रॉब्लम, इसका कारण है पार्टी फंड और इलेक्शन। मुझे तो लगता है ये प्रॉब्लम होगा कि ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। आईटी और आईएम्स वो सॉल्यूशन है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम किस तरह से आसान हो कि ज्यादा पैसा कर, क्योंकि इलेक्शन में जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसके आधार पर ही हमारा डेवलपमेंट का डिजाइन बनता है। तो हमने एक सोल्यूशन, एक तो नशा का अनुशासन जो है, मैंने 30 साल गांव में लगा, प्रॉब्लम वही नहीं, ऐसा 95 से इलेक्शन फेस करता था, लेकिन बाद में आगे चलो छोड़ दो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैंने दी थी। डेवलपमेंट की भी एक साइकोलॉजी होती, तो लोग सपोर्ट करते तो क्यों करते, अपोज करते तो क्यों करते, गांव में इतना सारा होने के बाद भी लोग नशा क्यों करते हैं? तो शराब पिलाने वाले और पीने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। इसके कारण जो भी गरीब है कुछ नहीं, बस शराब पिला दिया तो ग्राम सभा में गड़बड़ी शुरू हुई। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे कि एक पहला स्टेप था कि लीडरशिप, वो पंचायत से थी, दूसरा स्टेप था आम आदमी की भागीदारी यानी ग्राम सभा थी, अब तीसरा स्टेप ये था कन्वर्जेंस, लाइन डिपार्टमेंट का अच्छा पॉजिटिव हो और साथ ही में थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट। और ये होता है कि एक बार किसी काम का और लीडर का नाम हो गया तो सभी पार्टीज को लगता है कि हमारे पार्टी के साथ जुड़नी चाहिए, और एक पार्टी को सपोर्ट किया तो बची हुई 3-4 पार्टी अपोज करनी शुरू हो जाती। जब मैंने देखा तो पॉलिटिकल फ्यूचर बनाना है या गांव का भविष्य बनाना है, तब मैंने तय किया कि इतने विजिटर्स दुनिया भर से आ जाते हैं तो बस ये एग्जाम्पल हमें बनाए रखना है। तो इसके लिए हर साल हमने तो गांव में कभी डिसीजन करना नहीं कि वो गलत कुछ होगा तो चलो डिस्कशन करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। ये करते करते जब डेवलप हुआ और आखिर में फंड्स आते हैं कैसे और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा अपोज हुआ तब देखा कि इतना सारा करके लोग अपोज क्यों कर रहे, इतना सारा आउटकम, तो डर उनके मन में था पैसा आ गया कितना, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ये आगे रखा या कुछ गड़बड़। फिर मैंने ग्राम सभा में सोशल ऑडिटिंग शुरू किया वो 92 आने वाले फंड्स उसका यूटिलाइज, इसके कारण 90% लोग सपोर्ट में आए। अरे आप गलत है तो ग्राम सभा में बोल दो, ग्राम सभा में नहीं बोलते थे आप गलत है, ये हुआ। और दूसरा रहा 10% जिनके कारण मुझे इलेक्शन फेस करना पड़ा आफ्टर 35 इयर्स। और जब 2020 को अनाउंसमेंट हुआ 26 जनवरी पद्म अवार्ड का और इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, जो लोग मेरे साथ में घूमते थे सभी सीएम के साथ उनके फोटोज है
रोज मेरे साथ गाड़ी में डिस्कशन में है। उस वक्त उनको पूछा भाई क्यों कर रहे आप कर रहे संभव आप करो, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, नहीं कुछ ना अच्छा चल रहा है। और आखिर में जब नॉमिनेशन आ गया तो उन लोगों ने नॉमिनेशन दिया लेकिन विड्रॉ नहीं किया। बहुत बुरा लगा। अनाउंसमेंट तो हो गया पद्मावत का और इलेक्शन होने जा रहा, लेकिन मैंने बाद में जो बैठ के पॉजिटिव थिंक किया, चलो हम भी हमारे एग्जाम दे देंगे। 30 साल एग्जाम नहीं दिया, अब एग्जाम देंगे। लोग डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं, उसके ह्यूमन वैल्यूज कितने बढ़ गए किस काम के लिए सपोर्ट करने के। ये जब देखा तो मैंने एग्जाम की और कहा जिनको पसंद आया वो गांव के लिए डेवलपमेंट के लिए वोटिंग करेगा, पसंद नहीं वो नेगेटिव वोटिंग करेगा। गरीब परिवार से लोगों ने इलेक्शन किया और 96% लोगों ने डेवलपमेंट को सपोर्ट किया। गांव में लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, शराब नहीं, पैसा नहीं। और जब इलेक्शन जीत गया तो इंटरनेशनल मीडिया आ गई थी क्रॉस, और इतना बढ़िया काम किया, इलेक्शन भी होगा। तो मैंने इतना ही किया, जिन हाथों ने गांव का निर्माण किया वो संभालने के लिए सक्षम है या नहीं, वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। अच्छा 18 अगस्त को रिजल्ट किया 2021 में, तब देखा कि सब लोगों ने सपोर्ट किया, लड़ाई नहीं झगड़े नहीं। और जब काउंटिंग चल रहा था ब्रेकिंग न्यूज के लिए सभी चैनल खड़े थे, उनको ब्रेकिंग न्यूज देना था क्योंकि सब जगह चर्चा थी। पोपट पवार जी का पैनल फ्लॉप होने वाला है। अब आखिरी 2 दिन में तो ये डिस्कशन खुद पोपट पवार इलेक्शन हार जाने वाला है। तो बाहर से अच्छे लोग गांव में आते थे और मैं कुछ करो देखो नहीं तो पैसा शराब। अरे मैंने कहा मुझे भी मेरे एग्जाम देनी क्या। और जब रिजल्ट लग गए तो सब सपोर्ट में आ गए। और जब रिजल्ट के बाद लोगों ने डीजे लगवाए, फटाके, जो पोकलैंड से वो सब जेसीबी से गुलाल और लेकर, जब पता चला मैंने कहा बहुत खुशी की बात नहीं हो, हम इलेक्शन जीत गए। हम ऐसा मैसेज दे देंगे तो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कैसा करना है वो इलेक्शन सिस्टम हम दे देंगे। खुद करोड़ डिस्कशन और फायदा ये हुआ कि दूसरे दिन जब गांव में आ गए तो मैं 3 नंबर वार्ड से चुनाव जीत के आया था गांव में, और मैं रहता है घर में गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर। और जब वो देखा दूर है और गांव में 2 नंबर वार्ड पे रहता है, वो 3 नंबर में इलेक्शन किया, उसमें SC ST NT OBC BPL सब गरीब परिवार उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करके 50,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, अब पूरे गांव को खाना खिलाया। हम देखते हैं इलेक्शन में शराब पैसा और खाना खिलाने के बाद वोटिंग करते हैं, तो गरीब लोगों ने कहा नहीं हमारा भविष्य बदल रहा है। और इस तरह से कोई डिस्कशन नहीं हुआ और एक अच्छा गांव और अभी सस्ते में। और मैं तो कभी महीने में 10-20 दिन बाहर होता, फिर भी गांव में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसका एक ही कारण है ग्राम सभा प्रोग्राम में ट्रांसपेरेंसी और प्लानिंग। यह है तो इसके कारण अगर इलेक्शन भी हो बाकी अनुशासन भी हो तो वो अपने आप आ जाता है। अभी लोगों को डर है कि आउटसाइड से इतने लोग आ जाते हैं तो गांव में प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, चाहे गुटखा और उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओपन डेफिकेशन फ्री गांव बन गया, 100% टॉयलेट और शो भी 1 बास्केट होते 100 रुपीज। तो ये है कि मच्छर भी नहीं है गाँव। तो इस तरह से जो प्रयास किया ग्राउंड वाटर इतनी लेवल आती है 31 मई को 35 करते बस ठीक है। Thank you very much.